पूछना था, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ओके, वी आर गोइंग लाइव इन नेक्स्ट 2 seconds now. ओके जी, वी आर लाइव। ओके जी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahira. I welcome you all on behalf of Autism Resource Group Pakistan. आज हमारे साथ हैं अतिया, commonly known as टिया। तो अतिया, आपको टिया बुलाएं या अतिया बुलाएं, पहले आप ये बता दें। वो आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। I think टिया is fine because everybody know you with टिया। मेरे पास अच्छा आइडिया है। माइक अनम्यूट है। सो अतिया बेसिकली कराची से हैं और एक सुपर मम इसलिए है कि वो एक बहुत ही अमेजिंग बच्चे की मदर है जिसके साथ वो बहुत मेहनत करती है। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग अतिया फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैं उनके बनाए हुए रिसोर्सेज देखती हूँ और मैं बहुत अमेज्ड होती हूँ कि वो किस तरह इतनी मेहनत कर रही हैं और किस तरह जो उनके पास अवेलेबल चीजें होती हैं उनसे वो रिसोर्सेज जनरेट करती हैं, जहां तक मुझे पता है। So Atiya, I would like to leave your introduction on yourself. Please अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, आप कहाँ रहती हैं और ये जर्नी कैसे शुरू हुई, प्लीज उसके बारे में बताइए। Sure, Shahira. Thank you first of all. Assalamu alaikum everybody for giving such an excellent introduction about me. सबसे पहले तो I would like to congratulate both of you and I would like to compliment Elena on behalf of Pakistani community सारे के सारे के for creating such a rich forum, for creating such a rich page जिसपे हम सब like minded parents and we tend to learn on a daily basis. Am I hearing me right? Yeah. So I just want to congratulate you. I'm sorry Atiya, I think आपके तरफ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। If it's possible आप कोई हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि we can't hear you properly. आयशा समी, आपका मोबाइल आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। काइंडली प्लीज मेक श्योर कि आपका जो सेल फोन है या सिस्टम है वो म्यूट ही रहे। थैंक यू। Hello. हाँ जी, अब बोलिए प्लीज। Can you guys hear me now? Yeah, it's much better. Cool. So I'm going to rewind. Acha. Elena and Shahira, thank you very much, ladies. I really wanted to compliment both of you on behalf of Pakistani community to create such a rich page and forum where like-minded parents and parents like us who are like privileged to have such challenge kids, we tend to learn from the page that you have created, mashallah. So सबके बच्चों के challenges different हैं, but हमारा agenda is the same, and I know how difficult it is for you कि आप पाकिस्तान में रहकर Elena इतना ज़्यादा काम कर रही हो. So whether is it about diet, or is it about the therapies, or is it about biomed introduction and then creating awareness to the entire community? Hats off, lady. You are doing a commendable job. That's awesome. Okay, now जैसे कि आप Elena को मैं again, I would like to thank her for motivating me from probably 8 to 9 months. कि जो है we had to do this session. Please accept my apologies. I was probably a bit lazy, or probably was not getting enough time to put my to bring myself together और हम इस तरह पे कुछ करें. मैंने थोड़ा बड़ा environment से या मेरे motivating and encouraging me. So जो हमारा टॉपिक है home learning
जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. I think there is a lot of distortion on your end. मैं कोशिश करूंगी कि हम इस पर से ज्यादा आपकी आवाज नहीं आ रही. Sorry everyone, I think Atiya के end पे थोड़ी सी कुछ distortion आ रही है. Bear with us. She would be back. मैं तब तक कोई क्वेश्चन देख लेती हूँ. लीना कोई है? Can't hear. जी वो फिक्स कर रही हैं बिल्कुल. Nice to see you too, Salia. अस्सलाम वालेकुम बतूल. I guess overall ही पाकिस्तान में कुछ इंटरनेट का मेरे भी एंड पे था लीना. मैंने भी 4G कनेक्ट किया ताकि ड्यूरिंग सेशन ना मसला हो. ठीक है. Atiya, once you are ready, please let us know. Give us a thumbs up और फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. हेलो. हाँ जी, अब आप प्लीज बोलिएगा. अब हम आपको सुन सकते हैं बिल्कुल. Perfect. I hope ऐसा कोई मसला नहीं हुआ. Actually, I tried to tell Elena in the morning also we're having some electricity issues in our vicinity. So I hope मुझे फिर से ना हो. मैंने इधर उधर अपने आप को ट्राई कोशिश तो किया. मैं इक्विप रखूं नेट भी. I hope फिर से कोई मसला ना हो. No problem. Please continue. That's okay, Atiya. Okay. So let me tell you something about myself. I was born, educated, and married in Karachi. So I am a total Karachiite. Then I got married, and post-marriage, I lived in different cities across Pakistan for a few years, including Islamabad, Quetta, and Lahore. And Lahore was a time when I got my first child, Omar, who was born in 2006. After Omar, we moved to different places in the Middle East, from Bahrain to Riyadh and to Dubai. I had my wonderful time there when we were in the Middle East, because I had a passion and I had a passion to make clothes, and I was always fond of photography. So that was the time जितने मैं अपना पूरा का पूरा टाइम फोटोग्राफी में और कपड़े बनाने में दे सकती थी. Till the time we moved to Dubai, I got pregnant before going to Dubai, and that was the time when Allah gifted me with a very special child, Shahryar. So that was the time when Shahryar was born in 2016. जैसे कि सारे एक किसी बहुत ही न्यूरोटिपिकल बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं, हमें शहरयार के पहले 1.5 साल जो है सारे के सारे माइलस्टोन्स we could see him. He was a very easy and happy good child. So he met all of his milestones within that time bracket, starting from उसका जो अगर हम physical movement के हैं, अगर हम उनका बैठने का टाइम देखें, उनकी क्रॉलिंग देखें, और हर चीज उनके टाइम पर हो गई थी, एक्सेप्ट दैट ही हैड दैट यूनिक स्टाइल ऑफ क्रॉलिंग विद थोड़ा सा टो को टिल्ट करके वॉक करते थे. एंड ही हैड दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल फेशियल एक्सप्रेशंस जिससे वो हमको वेलकम करते थे. व्हाट माय पॉइंट हियर इज कि वो हमेशा से अपने एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल रहते थे. वो कभी भी कि कोई आ रहा है या जा रहा है, उनको एंजाइटी होना उस जमाने, उस इतने यंग एज में भी, या अपने आप को हाथ रख लेना, या किसी भी किस्म के सिम्टम्स उनके अंदर हो, ऐसे कोई सिम्टम्स उस वक्त तक नहीं थे. And I remember that he had a very strong eye contact as well. And above all, he had this excellent hearing strength. वो हमें कैसे होता था कि whenever his dad used to come back from work, ये क्रिब में होते थे, तो ये फौरन से नोटिस करके इनका एक कान ऊपर से उठता था कि he used to acknowledge his dad's presence. That was his first year and a half. Till we got our first MMR vaccine, which was bound at age of 1.8. उनकी जो वैक्सीन हो गई थी उसके आई थिंक उसके बाद के अगले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर हमने थोड़े से चेंजेस उनके अंदर देखने शुरू कर दिया थे.
there were some changes which were quite visible. लेकिन वो हमने उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे थे जब शहरियार की आंटी विजिट करी थी दुबई में. So my sister, she was visiting us in Dubai, and in the same time, Shahryar, we got registered him in one of the British schools. Sorry, just give me a second, please. Sorry. I hope you guys can see the screen, right? Yes, yes, we can. This net आ रहा है, जा रहा है, कुछ मसला हो रहा है इधर. Okay. No problem. So, we can see. Okay. So that was the time when he got registered in one of the British schools, and we got first complaint from his teacher कि शहरियार जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा फेंक देते हैं और सब बच्चों के साथ मिंगल नहीं करता है. और जब उनके टीचर ने मुझे ये बात बोली तो I don't know, probably I was a bit offensive, and I couldn't take it that time. Because Shahryar के साथ I was trying to be more flexible as compared to my adult child, क्योंकि by nature I myself I'm a very organized and firm woman. So you know कि क्या manners होने हैं और किस तरह उठना है, बैठना है, timing, schedule, ये सब हमारा schedule बहुत पहले से हो रहा था. तो with Shahryar I tried to play cool, and मैंने कहा कि you know, I'll try to let him be the way he wants to be. So when the teacher, when she complained that, you know, there's something wrong with your child, he's not mingling well with other kids, I was a bit offensive, and I shifted Shahryar from this school to another wonderful Montessori kindergarten play school group था वो, जो कि बहुत ही अच्छा था, जिधर से Shahryar को बहुत ही warmth और बहुत welcoming teachers थे जो उनको मिले थे उधर. अच्छा, ये जब साथ ही हो रहा था, स्कूल से एक दफा कंप्लेन आ चुकी थी. साथ ही मेरी सिस्टर जो है वो मुझे दुबई में विजिट कर रही थी, तो हमारे कजन भी साथ उनके, यानी शहरियार के कजन भी साथ है. When they left, then my sister messaged me once that, you know, I wonder why Shahryar not mingling well with other kids. वो we had a lounge, and Shahryar वहाँ से बैठ के बाहर दरख्तों पे देखते रहते थे बहुत देर तक. तो again I was like, you know, it's okay, कोई इतनी उसकी बात नहीं है कि वो बाहर देख रहे हैं. So my sister, who is in America, she's a doctor, she's a surgeon, she very humbly, she messaged me कुछ email बने करे थे, that was regarding children with different abilities. So that was a time जब मैंने, I still remember, I can recall, that was a night जब symptoms पढ़ने शुरू करे, पहले दूसरा तीसरा एंड बिंगो, वो सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो मैं अपने बच्चे के अंदर देख सकती थी. यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आई कांटेक्ट नहीं होता, और नेम रिकग्निशन नहीं होती, और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं होती, और कमांड फॉलोइंग नहीं होती. तो वो सब मैंने सब शहरियार के अंदर देखे. एंड शुक्र अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ये है कि I don't think I had ever been in denial mode. I accepted it, and I knew it that there's something wrong. So that was a night when I read about it, I researched about it the whole night till morning. And I think it took like probably 2 days for me to convince my husband that, you know, there's something to look after जब हम शहरियार के बारे में बात करें. तो अच्छा, उस वक्त बायोमेड या किसी किस्म की भी और फैसिलिटी, because the term, it was so much new for us. हमारे फैमिली में कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. तो और there was nobody, I didn't have any helping hand तो मुझे कुछ भी किसी किस्म की अवेयरनेस ला सकता होता. तो मैंने उसी दिन से जब रिसर्च करा, I got to know about ABA उसी वक्त रिसर्च से, और about the doctor, जो काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं दुबई में, डॉक्टर बारहा. there's a hospital called Al Zahra Hospital, वहाँ पे एक डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर बारहा, और apparently वो बायोमेड उसका करती थी. So I took an appointment, and मैंने साथ ही साथ इनको ABA में रजिस्टर करा दिया. अच्छा, मैं आपको साथ साथ उसको ये भी बता दूं, जो साथ और सिम्टम्स जो हमें शहरियार के नजर आ रहे थे उस वक्त, बाहर वो देखते थे, उनको ऐसा था, उनको नॉइज सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, कि जैसे घर में ब्लेंडर ऑन हो रहा है, कभी किसी का बर्थडे है, जब बहुत बच्चे साथ जमा होते थे, and used to sing happy birthday song, he used to get irritated and he used to cover his eyes जब हम कोई सॉन्ग वगैरह ज्यादा शोर होता था. फिर उनके कॉलर्स, जब वो कफलिंग होती है, कॉलर होता था या शर्ट के इधर बटन होता था, वो उसको नहीं पहनते थे, और वो जूते नहीं पहनते थे, वो पार्क में ऐसे ही भागना शुरू कर देते थे. और उसके साथ ही
उसके साथ ही ब्लेंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग से हो गया, ये सब उनको बहुत, उस वक्त उनके कुछ बहुत ही खास किस्म के अल्फाज थे. He used to hold pencils all the time, and I've tried to put some pictures here जिसमें आप देखेंगे इनका प्ले स्कूल था, जिधर ये इधर अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए प्ले स्कूल में. दूसरे वाले में भी इनका प्ले स्कूल है, एंड ऊपर आप ये देख रहे हैं ये सब कुछ एनिमल्स है जिसको ये लाइन अप करना शुरू कर दिए थे उधर. तो ये कुछ एनिमल्स है, एक थॉमस ट्रेन थी और तीसरा इनका कलर्स है जिसको इनको फिक्सेशन हो गई थी उन चीज़ों के साथ. जब ये सब हुआ और हमने फिर नेक्स्ट डे से ही शरियार को हम डॉक्टर बारिया को जाके मिले. देन शी टोल्ड अस आफ्टर सम टेस्ट, उन्होंने हमें उसी वक्त IgE करा शरियार के लिए, और उन्होंने कुछ हमें स्टूल एनालिसिस एंड यूरिन टेस्ट ये सब कराए, उनका CBC और डिफरेंट किस्म के ब्लड टेस्ट कराए. जब उनका रिजल्ट आ गया और जब शरियार ने, हमने साथ साथ उनको ABA में डाल दिया, तो डॉक्टर बारिया ने कहा कि देयर शरियार को डायग्नोसिस उन्होंने दिया. अकॉर्डिंग टू हर शरियार हैड स्पीच डिलेड एंड शरियार इज ADHD, which I didn't agree at that time because Shariar had been never that hyper. Shariar was always a very calm and a good kid. उन्होंने हमें किसी किस्म के कोई because I have dealt with hyper kids, इस तरह के हमें कोई उनके साथ symptoms नहीं नजर आते थे. मैं थोड़ा सा, because there are so many parents who are new here, who are new to the diagnosis, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं इसको go through करूँ. डॉक्टर बारिया ने जब हमें टेस्ट करा दिए थे, हमें उसी वक्त इन्होंने बता दिया था you should put him off the gluten and the dairy. So हमने उनको उसी वक्त gluten and dairy से हटा दिया था, except that whenever he used to visit Pakistan, and Pakistan में मुझे उस वक्त लगता था it's difficult to carry on with that regime, तो हम कभी कभार उनको gluten दे देते थे. But there were some basic supplements like 5-HTP and CoQ10 and magnesium, folinic acid, vitamin D, omega-3, zinc and digestive enzymes जो हम शरी को दे रहे थे. Even at that time, I didn't know that I have to carry on with those supplements for the entire life. मैं अपने साथ साथ research मैंने on रखी हुई थी. साथ साथ मैंने aggressive किस्म की ABA therapy start कर दी थी, which was 5 days a week, and we were going to Rife USA with Jawahar Alvi, and even Jawahar Alvi is quite famous in our community. I was taking OT once a week for half an hour, and speech therapy also. Later on, speech therapy, we also started off with speech therapy. खाने पे हमने शुरू से स्ट्रिक्टनेस ऑफ द ग्लूटेन और डेयरी के साथ, नॉन GMO, कोई हम प्रिजर्वेटिव्स इनके साथ, इनके किसी के मेरे घर में वैसे भी नहीं आता था, बट इनके साथ हमने किसी किस्म का जो भी प्रिजर्वेटिव चीज़ें थे, स्नैक्स थे, हमने इनको ऑफ कर दिया था. उसके बाद हमने, जैसे डॉक्टर ने हमें रेकमेंड किया था कि वी हैव टू गो फॉर द बेरा टेस्ट, वी डिड दैट आल्सो. सॉरी, इट कीप्स ऑन गोइंग. तो अगर मैं आपको बताऊं कि ABA थेरेपी से हमने आई थिंक 9 या 10 मंथ्स का हमारा टेन्योर रहा होगा ABA थेरेपी का. व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद ABA थेरेपी, शरियार की वोकैबुलरी थी कुछ 20 से 25 वर्ड्स, एंड अगर मैं पूरा ग्राफ उठा के देखूं तो हमें ठीक ठाक गेन्स मिले थे. 25 लफ्ज से 700 लफ्ज तक शरियार की वोकैबुलरी इंक्रीज हुई थी. वोकैबुलरी ओनली विच वाज प्रॉम्प्ट ड्रिवन, which was prompt dependent. और जब उनको वो खास तरीके से ABA तरीके से वो सब चीज़ें कराई जाती थी तो वो बोलते थे, अदरवाइज वो नहीं बोलते थे. और OT के बहुत अच्छे थे. OT से भी हमें बहुत ज़्यादा गेन्स मिले थे. उन्होंने कॉलर वाले शर्ट्स पहनना शुरू कर दिए थे, उन्होंने शूज़ पहनना शुरू कर दिए थे, उन्होंने बटन डाउन शर्ट्स पहनना शुरू कर दी थी. वी कुड सी विजिबल इम्प्रूवमेंट इन हिज आई कॉन्टैक्ट. बट हम अगेन मुस्तकिल उनके साथ काम करते थे. आप ये देख रहे होंगे कि इधर this is my elder child, जो इनके साथ हम रोजाना इनको शाम को बाइसाइकिलिंग कराने लेके जाते थे, हम इनको पार्क लेके जाते थे, हमने इनको स्विमिंग में रखा हुआ था, हम इनको आर्ट क्लास करवाते थे. उस वक्त ही प्ले ग्रुप लेके जाते थे ताकि इनका इंटरेक्शन हो, मैक्सिमम सोशल इंटरेक्शन हो बच्चों के साथ. जो गेन्स हमें OT के बाद मिले, जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स में मिले थे, वो यही थे कि मैं शरियार को उस वक्त भी एक फ्री हैंड दे दिया करती थी, कि टू स्क्रिबल और टू डू व्हाटएवर ही वांटेड टू डू. तो वो OT से हमें बहुत गेन हुआ ना, कि पेंसिल ग्रिप शुरू से अच्छी रही माशाल्लाह, उनकी बैलेंसिंग माशाल्लाह से अच्छी रही, उनका वो जो एक खास किस्म का
क्रॉल करने का तरीका था उसके से हमें लग रहा था कि इफेक्ट होगा इनके वॉक पे भी, बट शुक्र है अल्लाह का कि उनके वॉक पे कभी किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो प्रॉपर वॉक करते थे, रनिंग करते थे, स्केटिंग हमारे साथ पकड़ के, हम बाइसाइकिलिंग जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, बाइक साइकिल करें हम इसको सामने बिठा लेते थे और हम इनको स्केट बोर्ड पे बिठाते थे। तो he had a good balance and I assume that was all because of that rigorous occupational therapy. अच्छा अतिया, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। आपने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि शहरयार को ऑडिटरी सेंसिटिविटी की थी, कि घर में कोई भी ब्लेंडर या ओवन की आवाजों से बच्चों को अक्सर सेंसिटिविटी होती है, और ये ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम पे उनको बहुत होती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को किस तरह आपने डील किया? क्या ओटी ने किया या किस तरह मैनेज किया आपने? डेफिनेटली ओटी ने किया। ओटी मेरे, अगर मैं शहरयार की अगर आपको बात करूं तो शहरयार के लिए ओटी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले करा, बिकॉज ऐसी अगर ऑडिटरी वही है, हमने फिर इनको जब नॉइज सेंसिटिविटी से हमें गेज हो गया कि इट्स द नॉइज जिससे इनको परेशानी होती है। वी स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ दोस लाइक हेडफोन्स। हम इनको हेडफोन बनाते थे, हम इनको डिसेंसिटाइज करते थे कोई भी जैसे कि, और ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनको फिर बर्थडेज पे नहीं लेके जाती थी, और ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनके सामने ब्लेंडर ऑन नहीं करती थी। मैं हाँ ग्रेजुअली इनके सामने मैंने फिर से कम करके ग्रेजुअली स्टार्ट करा, बट मैं इनको डिफरेंट किस्म के शुरू से डिफरेंट किस्म के टैक्टाइल इंट्रोड्यूस करती थी। इनकी जैसे मैं आपको ये कॉलर वाला शर्ट है और ये सब बातें, ये इसीलिए इनका हुआ क्योंकि हम इनके बॉडी पे कभी कॉपर से रब कर रहे हैं, कभी स्पॉन्ज से रब कर रहे हैं, हम विल बार ब्रशिंग शुरू से कर रहे हैं इनके साथ, हम डीप प्रेशर कंप्रेशन मसाज शुरू से कर रहे हैं। वी आर मेकिंग यूज ऑफ दोज लेवेंडर एंड एसेंशियल ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, जिससे इनका हम प्रॉपर अभी तक फ्रॉम दैट डे टिल डेट हम इनका प्रॉपर डीप प्रेशर कंप्रेशन मसाज करते हैं ट्वाइस अ डे, सुबह भी रात को भी। एंड यू वोंट बिलीव उस वक्त से भी जो भी इनके ओटी में सीख कर आती थी, हमें हेडफोन ने बहुत मदद की थी इनकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को कोप अप करने के लिए। तो हमारे हेडफोन ने बहुत हमको मदद दी थी। और दूसरा ये कि हमने किसी भी चीज को स्टॉप नहीं किया था, हमने इनको उन सब चीजों से कोशिश किया कि बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज आवर मोटिव इज टू मेक आवर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट and to make them familiar with the environment, because inshallah they have to survive in this environment. तो मैं वो करती रहती थी and वो gradually किस तरह transition time होता है, probably I'll speak about it in the later slide. जो transition time होता है, timer लगा के कि इतनी देर इन्होंने ये रखना है, जब वो blender on हो रहा था साथ साथ हम कुछ और भी on कर देते थे। Again जैसे कि कुछ rhythm होती हैं ऐसे जो कि occupational therapy में इस्तेमाल होती हैं, जो कि बहुत soft tones होती हैं। हमने तो उसको सीखा भी है, हमने उसको शहरयार के साथ अप्लाई भी किया, बट ऑल दोस पेरेंट्स हु आर new in this world, they can always Google about it, they can always ask me, I can send the link, they can always YouTube about it. There are so many rhythmic and soothing tones on YouTube कि वो बच्चों को soothe down करती हैं। And frankly मैं बताऊँ, मैंने बहुत इससे Surah Rahman भी लगाई है। When Shahryar used to sleep, I used to put on Surah Rahman. Even when he used to go to school, I used to put on Surah Rahman, because that was a time I can recall. I read some success stories about Surah Rahman by Qari Abdul Basit. तो हम वो भी लगाते थे। So you see, this is how हम उनको desensitize करते थे, volume के साथ, आवाज़ों के साथ, और gradually माशाल्लाह I think 2 to 3 months में वो इस चीज़ को overcome कर गए। जो हमारे main issues थे, noise को और ये collar वाला and shoes को, socks को, इसको वो overcome कर गए। तो जो इनका सॉक्स वाला था, शू वाला था, और जो कॉलर वाला था, वो हमने डिफरेंट मटेरियल से इंट्रोड्यूस करके इनको डिसेंसिटाइज किया। और जो आप आवाज का पूछ रही हैं, उसमें हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल हेडफोन रहा है। आई होप आई एम क्लियर एंड एबल टू आंसर द क्वेरी जिन्होंने भी हमसे पूछा है ये सवाल। Okay, then we move to... I can see in pictures sibling of Shahryar. तो मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप दोनों बच्चों के दरमियान वो बैलेंस कैसे करती हैं? हमेशा क्वेश्चन आता है कि एक दूसरा बच्चा फील करता है जो न्यूरोटिपिकल होता है कि माँ अटेंशन दे रही है मेरे छोटे भाई को या बड़े भाई को, जिसको ऑब्वियसली हमारी ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो वो बॉन्ड को आपने कैसे मैनेज किया हुआ है? बिकॉज आई कैन सी देयर अमेजिंग पिक्चर्स, सो कैन यू स्पीक समथिंग अबाउट दैट? जी
Sure, Shahira. I'm Alhamdulillah, truly blessed that my elder one is also he's mashallah very understanding child, and he has been a very good kid. जब जब मैंने उनसे जो support चाहिए उनको explain किया, उन्होंने मुझे support दी. दूसरी बात ये था कि शायद हमारा gap ज़्यादा था इन दोनों में काफी साल. He's 2006 born, and I had a miscarriage after that, and then I got pregnant with Shahryar. इनमें and Shahryar is 2006, okay, तो इनमें काफी गैप रहा है बीच में. तो शुक्र है कि अगर जैसे कि बहुत ही बेचारे 2-3 साल के बच्चे होते हैं और 1-1 साल के गैप होते हैं, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा फिर भी मुश्किल हो जाता है. मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा. और दूसरी बात ये अगेन, क्योंकि उस टाइम पर हम ब्रिटिश सिस्टम में थे, हमारे बच्चे ब्रिटिश स्कूल्स में जा रहे थे, तो हमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रही. अगर आप पढ़ाई को कोप अप करने की बात कर रहे हैं या किसी और के कोप अप करने की बात कर रहे हैं. दूसरा, अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मैंने शुरू से कोशिश ये की कि मैं लेक्चर से ज्यादा implement करके बताऊं. So when I used to do my own work, when I used to have my exhibition, or when I used to have my मेरा कोई और सेशन चल रहा है, मैं दुबई में भी I used to be part of some book clubs, और हम अपनी कुछ focus group sessions करते थे. तो अगर मैं वो हो रही थी तो I used to tell Omar that, see Omar, mommy is here, mommy is sitting, and I am going to be there for an hour and a half. और मैं कैमरा लगा देती थी और मैं उमर से मुझे जो सपोर्ट चाहिए थी उस वक्त, because he was also very young, he was maybe 6 years old or something, he was very young. तो इन्होंने अपने उससे मुझे उस वक्त जो सपोर्ट कर सकते थे पूरा सारा सपोर्ट करा था. Okay, and then I'm moving back again and again. Okay, and then we moved to Jeddah in 2016. उधर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ ABS से लेके. जद्दा आप सब अवेयर होंगे कि अनफॉर्चुनेटली जद्दा में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं. So even before moving to Jeddah, I tried to do my homework. I tried to consult different kind of therapists and the centers. There was just apparently one ABS center जो Jeddah में था, because my plan was जब ABS से शरीर को इतने ज़्यादा gains मिले, तो why not to carry on with ABA. मैंने कभी भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि we can survive without ABA, or the kind of ABA that is been doing there उस वक्त मुझे लग रहा था कि ABA is the solution. खैर हमें जो सेंटर था उधर जितने दिनों हम जद्दा में रहे हमें कभी उधर टाइम नहीं मिल सका. तो फिर मैंने I tried to chose my battle, and occupational therapy was the only therapy which was available. So I went to the center और मैंने उधर से इनको thrice a week occupational therapy start करा दी. और उसी वो जो occupational therapist थी उन्होंने ही कुछ अर्से बाद इनको एक speech therapist के पास भी लगा दिया. But it was chaotic. It was total disaster and failure. Unfortunately, probably there are some ladies who get degrees, but उनकी experience and exposure ऐसे नहीं होते. वो एक टाइम पर 10 बच्चों को बुला के थेरेपी कराती थी, and I was never comfortable with it, but that was the only choice I had there. And I could see Shahryar regressing there in Jeddah. उनका eye contact कम हो रहा था. उनकी socializing जो थोड़ी बड़ी हमने दुबई में मेहनत करके बनाई थी वो कम होना शुरू हो गई थी. I could easily see there's like loss of words. जो वो जैसे वो गोल होता था, हम फुटबॉल साथ खेलते थे, वो गोल कहता था, वो बैट बोलता था, वो कलर्स के नाम लेता था, वो नंबर्स बोलता था, वो सारे उसका स्पीच डिटोरिएट कर गया था बिग टाइम. और वो जूम स्पेस आउट रहता था मुस्तकिल जद्दा में. एंड एज अ फैमिली we were not happy in Jeddah. And that was the time I think मेरे पास 6-7 महीने बाद my husband got this opportunity in Karachi. अब जैसे आप देखें, this is the school जहाँ मैं picture दिखा रही हूँ, and I'm trying to show you through this arrow. This is the British. आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली. She will be back. इंटरनेट कनेक्ट हो रहा होगा उनका, रिकनेक्ट.
Tia, we can't hear you. और जितने भी she'll be back वो भी आ जाएंगे, और जितने भी चैट में क्वेश्चन है मैं वो बिल्कुल देख रही हूँ, और मैं उनको एंड पे जरूर हम इसे एड्रेस करेंगे, ठीक है? Let's wait for Atiya to come back. I think Alina, she got disconnected. जी शहीरा, she got disconnected. आ जाएंगे मेरे ख्याल से. Oh, that's okay. How much play is important? Atiya आती हैं तो हम क्वेश्चंस देते हैं जो भी आपके हैं. शहीरा, तब तक जब आप कोई क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो थेरेप्यूटिकली, तो प्लीज उनको आप आंसर जरूर. Let me see. How much play? प्ले तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या नाम है इनका? जाइना हसन. हाउ मच प्ले इज इम्पोर्टेंट? प्ले तो इतना इम्पोर्टेंट है. आपने शायद प्ले बेस्ड लर्निंग का नाम सुना होगा. वो इतनी कामयाबी से वर्क कर रही है पूरी दुनिया में. पाकिस्तान में अभी उतनी ज्यादा उसकी आप कह लें कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अब लोगों को आ रही है. लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देखें ना, तो हम भी जब बचपन में थे, हमारा बचपन था, तो हम जितना कुछ खेल से सीखते थे वो हम एक कमरे में बंद करके या एक टिपिकल जो रवायती अंदाज होते हैं पढ़ाई से, उससे नहीं सीख पाते थे. और अब के जो बच्चे हैं उनका प्रोसेसिंग सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे वो न्यूरोटिपिकल है चाहे वो न्यूरो डाइवर्स है. सो प्ले थेरेपी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, हमने उन्हें एक चीज सिखानी है जो वो टेबल चेयर पे बैठ के नहीं करना चाह रहे, तो हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं उनको सिखाने के लिए. और टीवी इज अ गुड ऑप्शन. मैं हमेशा कहती हूँ टीवी का यूजेज कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हर चीज एक बैलेंस में, और कहते हैं ना उर्दू में इत्तेदाल में अच्छी लगती है. हर चीज बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं अच्छी लगती. टीवी को भी हम यूज कर सकते हैं आपके बच्चे के फायदे के लिए. उसको भी हम स्ट्रक्चर्ड प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव है. फॉर इंस्टेंस, आपका बच्चा अगर मेन स्ट्रीम में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा है, तो आप टीवी पे, आपकी एलईडीज या स्मार्ट टीवीज हैं, आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके इतने ज्यादा राइमिंग सॉन्ग्स हैं जो आप प्ले कर सकते हैं. क्योंकि म्यूजिक के रिदम के साथ जब भी कोई लेसन हम पेयर कर देते हैं ना, तो वो बच्चा कुछ सेकंड्स में पिक कर लेता है. क्योंकि स्पेशली वो बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे हैं, वो हर चीज वो बहुत जल्दी पिक करते हैं जो डिफरेंट तरीके से उन्हें सिखाई जाए. Why? Because their brain process in a different way. Is she back, Alina? शहीरा, चेक करें आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है. हेलो. Okay, let me see. Yeah, she's here, Alina. Screen. हो गई कनेक्ट? Okay. अतिया. Can you see me? Yes. Yes. Elena, वो परमिशन में लेना चाह रही थी स्क्रीन शेयरिंग की भी प्लीज. जी बिल्कुल. टिया, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं. I have to speed up, I think. Yes. Yeah. Okay. Before के इंटरनेट पे चला जाए. Yes, that comes with the package, you know. आज हमारा सुबह से I in fact message Elena in the morning कि जी हमारा जो electricity नहीं आ रही है, session हमारा jinxed है. You know, there's something wrong with our session. Anyways, I'll try to fast forward. Yeah. Shreya, do you want to ask any question in between? अगर आप लोग कुछ पूछना चाहो तो टिया, देयर इज अ क्वेश्चन कि आप लोग क्योंकि आपके बच्चे की वीडियोस अक्सर देखते हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि आप उसे इतने टाइम के लिए टेबल टॉप पे बिठा के कैसे रखती हैं, और नंबर 2 क्वेश्चन है कि उसकी रीडिंग पे आपने काम कैसे किए. Okay, so we are at the right place. अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारा मेन टॉपिक था, उसको मैं आपको ये सब सवाल इस स्लाइड में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे. So when we move back to Karachi, उधर कराची से भी आने से पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं
थेरेपिस्ट से, स्कूल से और रिसोर्स टीचर से बात कर लूँ. So when we came to Pakistan, fortunately we got him into Learning Tree, which is supposed to be inclusive school. I hired a resource teacher already before coming to Karachi, और साथ ही हमने इनको ज़ियाउद्दीन में थेरेपीज के लिए डाल दिया था. Again with ज़ियाउद्दीन, I didn't have much of a good experience, और फिर fortunately I got a hand on Asya Shaswani. She was the director of speech and pathology department in ज़ियाउद्दीन. I got to learn a lot from her, जो कि आप लोग मेरे वीडियोस में और मेरे काम में मॉन्टेसरी स्पेशली मॉन्टेसरी एड देखते हैं, और मॉन्टेसरी से जो हमारे बिल्कुल ही पिलर्स होते हैं, इनिशियल पिलर्स बच्चों को सिखाने के लिए, वो सब काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेशन आसिया शस्वानी ने मुझे बताई थी इन सब के बारे में. हमने होम लर्निंग, जब शिरार की स्पीच थेरेपी आई थिंक ट्वाइस अ वीक स्टार्ट कर दी थी, और we started going to Let's Talk later on, and we were with Sara Alam for occupational therapy as well. साथ ही साथ हमने घर में डे 1 से ये मैं अब उनको पेरेंट्स को बताना चाहिए अगेन, जो कि नए हैं और अपने बच्चों के साथ घर पे काम करना चाहते हैं. मैंने शुरू से बहुत स्ट्रक्चर्ड रूटीन शरिया के लिए रखा है. आई ट्राई टू हमने घर में बहुत ज़्यादा पेक्स इस्तेमाल करे, हर चीज़ को हम लेबल कर देते थे शरिया के लिए, और हम मुस्तकिल बोलते रहते थे. So, if you're sitting in the living hall, or we are in the drawing room, or we are in the his study room, or even in the washroom, हमारे अभी तक सारी जगहों पे तस्वीरें लगी हुई हैं. विजुअल एड का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमने पेक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया. अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि शरियार की जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इनका सिटिंग स्पैन माशाल्लाह इतना ज़्यादा क्यों है, हाउ कैन यू सिट फॉर लाइक 3 to 4 hours. अगेन द क्रेडिट गोज टू ऑक्यूपेशनल थेरेपी. हमने इनके जो मैं सीख कर आती थी इनके ऑक्यूपेशनल थेरेपी की क्लास से, जो वेस्टिबुलर एंड प्रोप्राइसेप्टिव स्किल्स होते थे, जो थेरेपीज होते थे, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते थे. आप अगर इसमें मैं आपको आगे छोटा सा मैंने एक वीडियो भी लगाया, बट आप इस तस्वीर में Tia, you got mute. I don't know what is happening. Is it okay now? Yeah, go ahead. Okay. तो स्कूल में जो इनका हो रहा था, क्योंकि हमारा मेन फोकस स्कूल में ही है, इनका प्री जो किंडरगार्टन था इन ग्रेड 1 में था, हमारे पास इस वक्त सिर्फ मैथ इंग्लिश होता था, और मैथ इंग्लिश में भी हमने काउंटिंग की थी, और बिग एंड स्मॉल नंबर्स के लिए थे. क्वांटिटी क्या था, हमने क्या था कि किस तरीके से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे काम कर सकते थे. अलॉन्ग विद दैट, एज आई वाज वर्किंग विद आसिया शस्वानी, हमने शरियार को पहले से जो आगे क्लास था उसके लिए भी तैयार करना शुरू कर दिया था. सो वी वर वर्किंग ऑन स्किप काउंटिंग एज वेल व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन एंड 1 grade. ऑल्दो स्कूल में ये सब चीजें उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी. साथ ही साथ हमने प्री राइटिंग जो रिक्विजिट्स थे उस पर बहुत काम किया था. हेलो, Yeah, Tia, go ahead please. Okay. Yeah. हमने इनकी प्री राइटिंग रिक्विजिट पे बहुत ज़्यादा काम किया था. मैं शुरू से जब भी मैं इनको किसी किस्म का टास्क देती थी, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट हिज इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर उनको मुझे पता था थॉमस ट्रेन से इंटरेस्ट है, तो मैं उस थॉमस ट्रेन का फ़ायदा उठाती थी. मैं उनको किताबें भी वही पढ़ाती थी जो कि थॉमस ट्रेन से रिलेटेड होती थी, तो मैं वो एक और मैं उसको लीड करने देती थी कि वो जब किताब पढ़ रहा है तो वो जिस तरह से, जरूरी नहीं है कि पहले वो वही पेज पढ़ेगा जो हमने खोला है, या वो एंड में नहीं जा सकता. आई नेवर यूज्ड टू डायरेक्ट हिम एट दैट टाइम. आई ट्राइड टू लेट हिम लीड द थिंग. तो वो अपने बुक को खुद से इस तरह से एक्सप्लोर करते थे. उससे मकसद क्या होता था कि वो जो टास्क कर रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड है. आप समझ रहे हैं? तो ये डे 1 से हमारा तरीका रहा. तो जो मेरा सजेशन आप जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर चाइल्ड interest in any kind of task you want them to do. Set rules, set a routine. जो rules होता है, procedure and follow, जो भी आपके घर में बच्चे के sleeping pattern से लेके, eating pattern से लेके, bathing pattern से लेके, play time से लेके, और work time से लेके, इस सब का आप pattern set करें. क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों को transition सिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि ओके, नाउ यू आर वर्किंग हियर, और इफ यू आर एबल टू फिल दिस बोल विद बीड्स, only then you can get that reinforcement. Or third point मेरा यही था actually कि always offer a positive reinforcement for a child. If you're giving them any task, make sure that they finish the task,
और शुरू आप इसी तरह से करें कि वो जो टास्क का टाइम हो वो बहुत थोड़ा हो. यू ऑल कैन ऑलवेज स्टार्ट विद लाइक 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड के टास्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं आपको बताऊं, जब मैं घर में थी एंड आई यूज्ड टू बी इन किचन, शेरी मेरे साथ काउंटर पे बैठा होता था और मैं प्ले डो बहुत सारा जमा कर देती थी एंड मैं स्पैगेटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नूडल्स लगा देती थी. आई थिंक मैंने अपने स्टोरीज में भी शेयर किया हुआ शरियार के पेज पे, और शरियार में बीट्स डालते थे. So while cooking, I used to be part of that game also. कि Shariar, mommy's turn. Mommy's gonna put 2 beats. Now Shariar's turn. तो Shariar अपना 1 बीट लगा देते और मैं 2 करा. इस तरह से हमारा जो टास्क था वो engaging हो जाता था, interesting हो जाता था. Shariar का attention, उनका eye hand coordination, उनका interest, उनका बात करना, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, वो मैं मुस्तकिल बात करती थी. Okay, we are working with the Play-Doh and purple Play-Doh and we have this and so I try, I always use nouns and adjectives and pronouns इस तरह से, ताकि हम उनकी vocabulary पर, उनकी language पे काम करें. अच्छा, फिर तीसरा जो मैंने again अपने experience से सीखा है, आप सबको चाहिए कि use literal language with your kids instead of figurative. बहुत clear बात करें, simple precise words and simple and precise language इस्तेमाल करें. Please do not give them those long lectures. For instance, if you want to try to sit and match something, so just say match. That's good enough for them. Or as a matter of fact, अगर आप एक step आगे भी चल गए, you can say, okay, match the color. That's it. You don't have to say वहाँ से color उठाओ तो इस shape में डालो और इसको ऐसे करो. No. I see this thing happening here in Pakistan कि हमारे even therapists unfortunately, और जब वो इतने ज़्यादा words का bombardment कर रहे होते हैं बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे बच्चों को अच्छा भी लग रहा होता है या वो उसको वेलकम कर रहे होते हैं. तो आप अपने वर्ड्स को बहुत सिंपल रखें, थोड़ा बोलें, 2 से 3 लफ्ज में कोशिश करें आप पर काम हो जाए. एंड देन लेट देम प्रोसेस द थिंग. आपने उसको जो भी कमांड दी है, आपने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, अगेन आप सब ने आई एम श्योर इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा. जब हम थेरेपिस्ट पे जाते हैं तो दे डू इट, मैच इट, 10 सेकेंड में रुकते, मैच इट. लाइक मैं वहाँ बैठी होती हूँ, मैं इरिटेट हो रही होती हूँ कि हेलो, लेट्स हिम प्रोसेस, उसका दिमाग तो काम करने दो यार. तो आप उसको उसका टाइम दें, उसके दिमाग को प्रोसेस करने का, उसको सोचने समझने की सलाहियत है. अच्छा, दूसरी बात फिर आप क्या करें, इसी सब चीज़ों में अपने बच्चों का सोशल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें. उनके आपके जो कजन्स हैं, बच्चों के, आपके नेफ्यू नीस कजन्स, नेबरहुड में कोई बच्चे हैं, आप कोई एक हफ्ते में एक दफ़ा प्ले डेट रखिया करें. और कोई भी इस तरह की सिंपल एक्टिविटी जो बच्चों की जिसको बच्चों में इंटरेस्ट हो, इस किस्म की एक्टिविटी उन बच्चों के साथ करें. these all activities can help to raise or to increase the attention span of our children. ठीक है, मैंने आपको ओटी की भी एक्सरसाइज बता दी है, मैं आपको थोड़ा सा आगे और भी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इनके और सिटिंग स्पैन में काम करा है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात एक और कि आप यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव टू रिड्यूस any kind of distress that is in the environment. Our children have a sensory processing. Most of our kids, they are sensitive to so many things around them, whether it's lights. Sherry is not too comfortable with bright sunlight. He's not very comfortable with white light. I'm not very comfortable with that white light. I don't like white light. कुछ टेस्ट होता है, कुछ टच होता है. सो मेक श्योर कि जब आपने बच्चे को बैठा रही हैं, जिस जगह पे कोई भी टास्क करा रही हैं, उस environmental distress नहीं हो. उनके सारे he should be properly fed, he should be properly slept. और दिन का वो टाइम चुने जिस वक्त आपको लगता है कि बच्चे का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है, आप उस वक्त बच्चे से वाला काम कराएं. ओके, तो हमने इनके स्कूल में साथ साथ आपको बता रही हूँ किस तरह से काउंटिंग मैंने इस स्लाइड पे भी लगा दिया है, और जो बाद में इसको पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं. हमने काउंटिंग, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, इस पे काम करना शुरू कर दिया. स्किप काउंटिंग में काम करना शुरू कर दिया. हमने प्री राइटिंग रिक्विजिट्स पे काम करा, जो हमने इनको फ्री हैंड राइटिंग दे देते थे. हम इनको एक्सरसाइजेस कराते थे, जैसे कि स्पूनिंग है, बच्चा स्पूनिंग करा है. हम इनको स्पॉन्जिंग कराते थे, जिससे इनके माइंड को हमने प्रिपेयर किया, इनके हैंड्स को, इनके फिंगर्स को हमने प्रिपेयर किया दैट दिस इज हाउ यू गोइंग टू ग्रिप द पेंसिल. सो ये सारे एक्सरसाइजेस जो हैं बच्चों के अपने पेंसिल ग्रिप को और इनकी फिंगर्स को स्ट्रेंथन करते हैं काम करने के लिए आगे. इसी तरह से सीजर कटिंग, और जब मैंने आपको बता दिया बीट्स का काम करते थे, स्ट्रिंग्स का काम करते थे, ये सब करते थे. इंग्लिश में साथ ही साथ हमने जो रीडिंग पे हम कहते हैं हमने काम किया था, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा था, वो भी अगेन आसिफ शिस्वानी ने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई थी साइट वर्ड्स के नाम से. तो दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए इस्तेमाल होती है. मैंने डिफरेंट किस्म के साइड वर्ड्स के ना बड़े बड़े कार्ड्स बना लिए थे शरियार के लिए, और वो साइड वर्ड्स थे जिनसे वो ऑलरेडी अवेयर थे.
जो उनके सराउंडिंग्स में होते थे, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, फॉर एग्जाम्पल टेबल, तो और वो वर्ड्स मैं इनको फ्लैश करती थी, यू नो, इनके सामने में, और वही वर्ड्स पीछे लिखे हुए होते थे, तो हम इनके साथ करते थे। इस तरह से इनकी बहुत ज्यादा रीडिंग को फायदा रहा था इनसाइट्स वर्ड के इंट्रोडक्शन के साथ। मैं खुद इनके साथ बहुत रीडिंग करती थी। जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, हम सुबह घर पर आके जब वापस आते थे तो 40 मिनट्स ये सुबह ये सारी थेरेपी घर पे करते थे, रात को भी करते थे। साथ साथ मैंने आपको बता दिया इनकी सब एक्सरसाइज होती रहती थी घर पे। हम टेक्स्ट का, फ्लैश कार्ड्स का, सोशल स्टोरी एंड सीक्वेंसिंग ने हमारे साथ बहुत मदद की। कोई भी नई चीज़ पे हमें इनको कहीं लेके जाना होता था तो हम इनको ऑलरेडी बताते थे कि जी यू नो दिस इज अ मार्केट प्लेस, गो देयर एंड ट्रांजिशन होगा, टाइमर लेके जाते थे, इस मार्केट जाना है, ये करना। इस तरह से हमने इनकी ट्रांजिशन पे काम किया। अब साथ ही आप देख रहे हैं कि what is this echoing? Tia, sorry for cutting you here, but I have a question here. I can see in your slide कि आपने color coding use की हुई है in text. बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं आपसे, क्योंकि ये दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी जो आपने कलर कोड किया है वर्ड्स को, एंड एक्सीलेंट स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। सो इसके बारे में प्लीज पेरेंट्स को बताएं ताकि इसके बारे में उन्हें पता चले कि आप कैसे और क्यों करते हैं। Absolutely, Shaira, that's a very good question. कलर कोडिंग हमने डे 1 से शरियार के साथ इंट्रोड्यूस की थी और अभी तक हम कलर कोडिंग पे काम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब हम बच्चे को देते हैं, वी नीड टू हाईलाइट दैट कॉन्सेप्ट। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हम बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हर चीज जब भी मैं शरियार को कोई नई चीज कराती थी तो आई यूज्ड टू पुट रेड कलर, जो टाइटल होता था दैट यूज्ड टू बी विद रेड कलर, बिग, बिफोर एंड आफ्टर, और स्किप काउंटिंग। ठीक है, अब उस चीज को फॉलो करते हुए जब हम उस पैटर्न को, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे तो हम वही कलर, फॉर एग्जांपल इफ इट्स आफ्टर, तो जो आफ्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब रेड कलर से आते थे। तो बच्चा, क्योंकि हमारे बच्चे विजुअल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो वो बच्चा खुद ब खुद अपने दिमाग में यू नो वो कोडिंग खुद ब खुद से आना शुरू हो जाती है बच्चों में कि ओके सो रेड वाज द कलर व्हिच पॉइंटेड ऑन आफ्टर थिंग। तो जो आगे जो भी आ रहा है वो जो रेड होगा वो आफ्टर के बारे में ही होगा, और जो ब्लू है वो बिफोर के बारे में ही होगा। So this is how we introduce color coding, और color coding is an excellent concept. Please all of you, आप जब भी कोई भी बच्चे को कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट कराते हैं, do use maximum use of different colors, और आप अपने तरीके से कर सकते हैं। You know, again मैं आपको इसके आगे वीडियो पे दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इनके नंबर्स पे काम करना शुरू करा था। पहले वो फ्री हैंड राइटिंग करते थे, फिर हम उनको डॉटेड नंबर्स दे देते थे, हमने इनको स्मॉल लेटर सिखाने पहले शुरू करे, फिर हमने इनको अपर केस लेटर्स लिखाना शुरू करे, फिर हमने इनको वावल का कॉन्सेप्ट लाए, शॉर्ट वावल एंड लॉन्ग वावल का कॉन्सेप्ट करा, वो भी रीडिंग में। एंड आई डू हैव स्ट्रैटेजीज हाउ टू डू दैट, बट आई थिंक वो टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। Anybody who's interested in all that, they can always come back to me. I can guide them, I can tell them. ये देखिए, आपको मैं इसको भी जल्दी से रिव्यू करके बताती हूँ। शहीरा देखिए, ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इसकी ये पहली वीडियो देखेंगी, दिस वन। So this is how I got this book from USA, जिसमें हम बच्चे को phonics, okay, and vowel के concept बता रहे थे और sounds बता रहे थे। और this is a letter M. अच्छा, वीडियो की क्योंकि आवाज नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। ओके, तो ये जो पहली स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हैं, इस तरह हम शरियार को एक्शन करके, आप आई एम श्योर शरिया इस चीज से अवेयर होंगे, जब हम कॉन्सेप्ट करें, हमने जब इनको साउंड्स इंट्रोड्यूस कराए थे तो वी यूज्ड टू टेल हिम दैट सी इधर भी कलर कोडिंग हुई है, इज द लेटर एंड साउंड में इज गोइंग टू बी तो वो जो है मैंने ट्रिपल एम इस्तेमाल किया हुआ है। एरो, जब वो एरो है तो वो एरो से बच्चा समझ लिया है कि फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड ही हैज टू से, you guys get me what I meant? ठीक है, और फिर उसी का मैंने उसका इस्तेमाल किया रैम में। ओके, रैम द एंडिंग साउंड हम जब बच्चों को सिखाते भी हैं, जब हम इनको 2 letter and 3 letter वर्ड सिखाते हैं, तो we always start with the ending letter introduction first, then we go to the first letter beginning letters जो होते हैं, and then we come to the middle letter sounds.
तो इस तरह से हमने मैंने बहुत इनके फोनिक्स पे काम किया है, क्योंकि मैंने खुद भी बचपन में यही सीखा था कि आपके फोनिक्स एंड ये जो लेटर बिल्डिंग साउंड होते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बच्चा कभी भी अच्छा वर्ड बिल्डिंग और अंग्रेजी में मुश्किल होता है बच्चे के। तो शहरयार माशाल्लाह इनके स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा फोनिक्स स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक थोड़ा, तो मैंने आपको कोशिश करी कि थोड़े थोड़े से मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो दिखाऊं, एंड इस तरह से अगर आप देखें ये पूरे साउंड्स बता रहे हैं। Unfortunately, you guys are not able to hear it. He's telling the sounds of all the lowercase letters here, mashallah. Okay. और इधर फिर जब ये ग्रेड 1 में थे, मैंने क्या किया था, इनको जो आपको पता है हमारे बच्चों को मसला होता है नेम रिकग्निशन में, तो मैंने इसी तरह से साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस जब कर लिए थे, उसके बाद जो मैं लाइन इनके साथ सेंटेंस बुलवाना चाहती थी, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी एट दैट टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट for him to know his name. Obviously, he was going to a mainstream school. People and teachers used to come and what's your name? And ये यूं कर लेते थे. So I myself thought of this idea. मैंने इस तरह के अलग अलग सेंटेंस बना के उसकी कटिंग करी, एंड एक ब्लैक जो हमारी वो जो टफ ट्रे टाइप भी जो होती है उसके ऊपर रख के मैं अलग अलग जम्बल अप करके वर्ड्स को रख देती थी, और फिर मैं इनको कहती थी, शेयर हाउ अबाउट वी मेक अ सेंटेंस, हाउ अबाउट वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। वो जैसे ही इंटरेस्टेड होते थे उसको करने के लिए मैं उनको कहती थी व्हाट्स योर नेम, और ये उनका हाथ पकड़ती थी। दिस इज हाउ मैं उनको जॉइंट अटेंशन, शेयर्ड अटेंशन के साथ उनका नाम बुलवाती थी। एंड ये हमारा जब व्हेन ही ऑलरेडी न्यू हिज नेम इज शहरयार, ओके, दिस इज स्टेप नंबर 2, because step number 1 is unrecognition of the name which our kids already have. उसके अलग tactics होते हैं, but ये मैं आपको, क्योंकि हमारा again main focus is academics and घर पे कैसे काम होता है, तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। So he's gonna put the name, the whole sentence himself, mashallah, here. This was when he was in kindergarten, mashallah. And again, ये हमारे vowel पे काम है different किस्म का। It took us quite a while, जो sounds होते हैं इस पे हमें काफी टाइम लगा था। ओके, एंड इसी तरीके से ये हमने इनके नंबर्स पे काम करना शुरू कर दिया था। क्वांटिटी नंबर क्या होता है कि आप सबको पता होगा कि काउंटिंग तो एक कॉन्सेप्ट है ही, बट ये बहुत कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है हमारे बच्चों के लिए। इफ यू टेल देम ओके गिव अस 4 समथिंग और जंप ऑन टू 4, तो इवन ये हमें काफी टाइम लगा कि क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट शेयर करने में। अगेन जो मैं वहाँ से थेरेपी से सीख कर आती थी, मैंने शुरू से शहीरा एंड एलेना कोशिश की कि मैं विजुअल एड्स ज़्यादा से ज़्यादा खुद से इस्तेमाल करूँ, मैं खुद से बनाती थी। अगर आप मेरे घर आएँ और मेरे घर में एक रूम देखें, सो दैट्स फुल ऑफ कार्टन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्टन्स एंड नॉन टॉक्सिक पेंट्स एंड पेस्टल्स। हमारे घर को दूध का डब्बा भी आता था, डोंट थ्रो इट, वी कैन मेक समथिंग फॉर शहरयार। तो ये एक तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो चलो अभी दूसरे तरीके से क्वांटिटी बताऊंगी। अब प्याज, टमाटर और ब्लॉक्स और पेंसिल्स और crayons or school, what not. I don't think I have missed anything. And then again, mashallah, his persistence and his patience, वो बेचारा इतना सारा मेरे साथ काम करता रहा है, hats off to him. Okay, Tia, from where did you get this motivation? मतलब वो क्या point था, क्या आपने सोचा कि मैं resources खुद ही develop करूं? Because making any resource कहने में और सुनने में बहुत easy लगता है कि ये इसका resource है, ये उसका resource है, but I can well understand कि एक छोटे से छोटा भी visual resource बनाने के लिए आपको किस हद तक मेहनत की और creative होने की जरूरत है। तो वो आपने कैसे की? और दूसरा मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप किसी ऑनलाइन कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप आइडियाज आपको मिले या आपको यूजफुल लगती हैं, तो वो भी जरूर बताएं। Okay, Shaira, first of all, thank you again for acknowledging that how much time and effort it takes. Yes, it does take lots of time, especially now when we are in grade 2, and I have to, oh my God, I mean, fill him up with so many new concepts, whether it's math, science, yeah, Angrezi ke. So, if you talk about creativity, so that thing was always in me. And मैं अपने फैमिली में भी थोड़ा सा मशहूर हूँ कि if I जब मैंने प्लान बना लिया कि जी ये कुछ करना है तो जी वो करना है, so that dedication and commitment was always there.
एंड व्हेन जब मैंने ये सब थेरेपी सेंटर्स पाकिस्तान में भी विजिट करे, ironically Shaira, I was not happy. I was quite undelighted. I thought that, you know, I'm not specifying any person because see वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं. आप थेरेपी कराने जाते हैं. Sara Alam के पास जब शहरियार ले जा रहे थे, she's supposed to be the best occupational therapist in Karachi, and yes, she had worked quite good with शहरियार. But वो अच्छा क्यों हुआ शहरा? क्योंकि वो बच्चा घर पर आके 40 मिनट, या आप थेरेपी ये देख रहे हैं, आपको मैं ये दिखाऊं कि ये जो पहली वाली वीडियो है, अगर मैं इसको चलाऊं, आई डोंट नो इफ यू कैन हेयर इट, कि हम इनके ओरल मोटर पे काम कर रहे हैं. जब इनकी वर्ड निकालने के लिए हम इनके ओरल मोटर पे काम कर रहे हैं. दिस सॉरी हियर पहले, दिस इज नॉट द वन, ये वाला. ये हम चेरी के साथ इनको चेरी ऑफर कर रहे हैं एंड ताकि अपना टंग निकालें बाहर, इस तरह के इनके मोटर स्किल्स पे काम हो रहा है इधर. एक ये जैसे मैं आपको बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ हम आई हैव ट्रिलियंस ऑफ वीडियोस एंड आई डिडंट नो व्हाट टू व्हिच वन टू ऐड. तो ये हम इनको ये जो डिफरेंट किस्म के हम इनको फोम से, लादर से, सिल्क से, कार्पेट से, हर किस्म के टेक्सचर से इनको हम डिसेंसिटाइज करने की इधर कोशिश करते थे. प्ले डो से, काइनेटिक सेंस से, आटे के साथ ये वो करते थे इधर आके हमारे फिर घर पे बैठ के. बट आई वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व विद हिम. मैं इनको अकेले कभी भी नहीं छोड़ती थी. अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी इनके प्रोप्राइसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर स्किल्स पे काम हो रहा है. ये आकर अपने दोनों एल्बोस, अपना हेड, अपना फोरहेड, अपना चेस्ट, अपना बैक, अपने पाँव के साथ दीवार पर बैलेंसिंग करता था. उस वक्त मुझे बातें नहीं समझ आती थी कि व्हाट द हेल आर वी डूइंग ऑल दिस. But yes, they did make a difference, and in fact, a remarkable difference. When I see my child, that mashallah, he had come a long way. Mashallah, he is sitting longer than other neurotypical kids. It's not easy for me to sit for 3 to 4 hours. Mashallah से ये बैठते हैं. इसी तरह से इधर इनकी एक्सरसाइज हो रही है. I'm sure आप सब you must be aware of this exercise. अब इस तरह से हम इनकी काउंटिंग पे काम कर रहे होते थे कि 1 से लेके इतने तक काउंट करना है, इससे लेके इतने तक काउंट करना है. तो ये सारे जो एक्सरसाइज हम घर पर कराते थे, उसी वक्त जब मैं इनके साथ या कोई भी पेरेंट या कोई भी मदर कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे के साथ काम करेंगे, तो ही आप गेन्स देखेंगे, तो ही आप डिफरेंस देखेंगे. अगर आप एक दिन अपने बच्चे को उठा के बता देंगे, जैसे लॉट्स ऑफ पेरेंट्स डू कॉन्टैक्ट मी एंड दे टेल दैट ही इज नॉट सिटिंग. अब एन आईपैड, हम उनको रीइंफोर्समेंट के लिए आईपैड दे रहे हैं और हम रीइंफोर्समेंट के लिए उनको कुछ एडिबल दे रहे हैं. आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल दिस. आई थिंक जितना हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जनरल एनवायरनमेंट के साथ सीख सकते हैं, वो आप जितना ज़्यादा कोशिश करें, प्रॉम्प्ट ड्रिवन हमारी स्ट्रैटेजीज नहीं होनी चाहिए. रीइंफोर्समेंट कुड बी अ हग, ओके. रीइंफोर्समेंट कुड बी wow, bravo. शरियार को इन सब चीज़ों की आदत है. शरियार को हम unfortunately again when I took him to one of the behavioral therapists here in Karachi, during वो आधे घंटे की थेरेपी में जिधर बच्चा जो है वो he has to go to loo, okay, वो बच्चा स्कूल से आ रहा है, he has to go to loo, वो अपना 5-10 मिनट वहाँ खर्चा करके आ रहा है. वो बेचारा थका बच्चा, आपको बैठे आप उसको मुस्तकिल ब्राइब करें, you'll get pistachio or you'll get this, answer this question. No, this is not how it works, my friend. This is not how it works. We have to do it ourselves if we want to make a difference. That's what I believe in. And अब जो आप ये बात कर रही हैं कि मेन मुझे कब क्या कहेंगे मोटिवेशन मिली, that I have to probably solely work for my child. Yeah, this was the time. मैं थोड़ा सा शेरा, अगर आप मुझे इजाजत दो 2 मिनट में जल्दी से थोड़ा सा बायोमेट जो हमने शरिया के साथ स्टार्टिंग में यही कराची आने के बाद किया था. We made some kind of support groups. जिस पे I met couple of very informative parents. अगर वो मुझे देख भी रहे होंगे, starting from Shumaila Tasif, she was the one who introduced Nemetschek to me, and Nemetschek did wonders with us. I was always happy and in favor of Nemetschek. हमने शरियार को कोई I think 9 से 10 महीने Nemetschek किया, but when you reach the plateau, we saw gains तो definitely आए थे, बहुत ज़्यादा gains आए थे. Starting from कुछ words बोलना, environment से comfortable हो जाना, और बहुत ज़्यादा eye contact होना, involvement होना,
लेकिन फिर वो मेरा शायद depending on Sharia's potential and depending on the work that child was doing, I was expecting more. So that was the time when I started looking deeper into biomed, and मैंने खुद से कुछ supplements देने शुरू कर दिए, and that was a time when I met other fellow mothers, जिन्होंने, you know, we used to exchange our thoughts about supplements, about कि कैसे बच्चे का routine और क्या क्या होना चाहिए. That was the time when I contacted Eric Willis, और हमने इनके कुछ 2-4 protocol करे थे, enzyme and biofilm protocol. But due to COVID, we couldn't get all kind of supplements. We had to stop with Eric Willis as well. Then we contacted Dr. Nick, and we are with Dr. Nick now. हमने शरियार की gut पर already काम कर लिया है, and mashallah, with very good gains. He does not have a leaky gut anymore. Before gut, हमने इनको कोशिश किया था इनके SIBO को treat करने के लिए. I'm sure there are so many parents who are listening to us, they don't know what is this. हमारे सारे बच्चों को almost सारे बच्चों को SIBO होता है. We have to मैं उस रास्ते में नहीं जाना चाह रही, ये बहुत लंबा एक और topic है, and soon inshallah we're gonna talk about this also. But my point is, we treated SIBO through low FODMAP diet, and we cleared up Sharia's, we detox his pathways. And right now what we are doing, agar aap biomed ki baat karenge, you could see him, you could see the brightness in his eyes here, mashallah. You see his involvement everywhere with his brother, and you know, there's a difference. आपने अभी जद्दा वाले तस्वीर अगर देखे होंगे और अब आप कराची वाले तस्वीर अगर देख रहे हैं. So now what we're doing ACC with Shariar. ACC में हम इनके जो बॉडी के अंदर इनके मेटल्स हैं उनको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं. Shahira, coming back to your question, this was the time when during pandemic, जब मुझे लगा कि जी अब तो सब चीजें बंद हो गई हैं और जो मैं 1 या 2 थेरेपीज इनकी थेरेपी वो तो नहीं होने वाली. All this, you know, centers were open for some time, but I was against it. I didn't take Shariar for a year and a half. Since अभी 1 हफ्ता हुआ होगा कि शहरी की मैंने स्पीच फिर से स्टार्ट करी है. Shariar was just homebound. We all were homebound. He was not going anywhere. And then a parent like me, where I don't let my child be on iPad or enjoy electronics, I had to make some home plan. I had to come up with something. There has to be some therapeutic learning environment which has to be beneficial for my child, where he should enjoy and he yet learn. Because you know, he promoted to grade 2 or grade 2 में Pakistan में, and this school जो IB system है learning field, and they have the curriculum is quite tough. So we had this इनके स्कूल में एक special educator भी हैं, Uruj, और then there was like mainstream teachers. The thing which was ironic though, when I had to hire the resource teacher, I mean, it was me who has to teach resource teacher also, you know. So that was just like, no man, this is not working. So resource the teacher she was willing to come home also. कि जी मैं आपकी help करा देती हूँ. I said no. This is the time I have to step in fully and take the charge of my child. आप सोचे Elena, Shahira, there were like so many difficult concepts which my child had to go through and learn, because अगर academics से आप बात कर लेती हैं, for a neurotypical child to grasp any concept, it's easier as compared to our child. हम क्या करते थे जब इनका previous हफ्ते का जो काम होता था, हम weekend पे वो काम भी इसको revise कराते थे, ठीक है? Which still used to be जो होता था Thursday के लिए, जो इनके अगले हफ्ते का काम आ जाता था, वो हम इनको Sunday को पहले से तैयार कराते थे कि इस हफ्ते आपके स्कूल में ये होने वाला है. And in between जो इनके करंट स्कूल में काम हो रहा है हम वो कराते थे. पेंडेमिक के थ्रू ही हमने इनकी स्पीच थेरेपी भी घर पे खुद से करना शुरू कर दी. मैंने इनकी बिहेवियरल थेरेपी भी घर पे करना खुद शुरू कर दी. तो इनका मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रूटीन बताती हूँ. शरियार का फुल डे हम पहले हम विजुअल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे. अब हम ये ऐसे कुछ प्रमोट हो गए कि we do not use much visuals. It's rather just the scripted thing or the text where उनका bathing time, उनका खाने का time, उनका snack time सब mention है, जिसमें वो खुद आ जाते हैं. वो सुबह mashallah we have worked so aggressively with him. He's he's independent. He takes bath himself. He brushes his teeth himself. He's completely toilet trained. Even he can clean himself mashallah se.
and you know the way he sits and eats his food. कोई मेरा बड़ा बेटा भी ऐसे नहीं बैठता. He sits, you know, he eats his food with proper spoon and knife, और रोटी को खाना और हैंडकरचिप साथ रखा होता है, मैट रखते हैं, उसके बाद वो जाके मैट को किचन में रखते हैं, वो अपना यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, पूरा का पूरा प्रॉपर इंडिपेंडेंट उसके साथ. फिर उनको पता होता है, he says himself work time, it's afternoon so it's my work time, so he knows for the next 3 hours मैंने बैठ के काम करना है. तो उस इसी पेंडेमिक में जब इनका स्कूल हो, शुरू में मुझे ये भी डर था क्योंकि मैंने शरियार के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स तो कभी करे ही नहीं थे, तो आई वाज वेरी स्कैर्ड कि आई डोंट नो हाउ इज गोना सिट एंड यू नो अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, but he started sitting mashallah from 8 o'clock till 12 o'clock, and then even 1:30 for this whole long period he used to sit and learn. हमने घर पे जब इनका हमारी नेक्स्ट से बात हुई थी, हमने घर का अपना पूरा एनवायरनमेंट मजीद बेहतर बनाने के टर्म्स में हमने घर में एक एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर लिया था. हमने शरियार के हर किस्म के प्लास्टिक जो हमारे घर में है, हम वी डोंट मेक यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक. शरियार के लिए तो 100% हम भी नहीं यूज करते हैं. सो सारे यूटेंसिल सब कुकिंग वेयर हमारा चेंज हो गया था. हमने एक रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम घर पे लगाया है इनके पानी के लिए, बिकॉज यू नो हमारे बच्चों के अंदर मेटल्स होते हैं. तो मैं जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकती हूँ कि एक सेफ एनवायरनमेंट, एक नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट कर सकूँ, वो मैंने कोशिश करी है घर में शरियार के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जिसपे इनका इवन जो जैसे बेदिंग हम एप्सम सॉल्ट से हफ्ते में 4 दिन ये एप्सम सॉल्ट एंड यू नो बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर विनेगर एंड क्ले, इसके साथ ये सिर्फ फॉर लाइक 20 to 25 minutes thrice or 4 times in a week. एंड इनकी स्विमिंग होती है, इनकी जिमनास्टिक होती है, इनके म्यूजिक क्लासेस होते हैं, आज से इनके टाइकोंडो शुरू हो गए हैं. मैं खुद से इनकी स्पीच करती हूँ घर पे. मैं बिहेवियर में ही इज अ वेरी गुड किड माशाल्लाह. आई हैवंट सीन मेल्टडाउन तो पहले बिल्कुल भी नहीं होते थे. अब जब से हमने थोड़ा सा ACC स्टार्ट किया है और गट रीसेट में हमारे ऐसे फेजेस हमारे आए थे जब वी हैड टू फेस मेल्टडाउन्स, बट माशाल्लाह से वो भी यू नो कवर हो गए थे. And we also changed his detergents, और जो जितने घर में हमारे सोप और टॉयलेटरीज और ये सब थे वो सब हमारे घर में हमने सब नॉन टॉक्सिक एंड नॉन केमिकल डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करे. इधर मैंने थोड़ी सी और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, काफी बार वो रिपीट हुआ है. द मदर इज आस्किंग कि आपने उसकी राइटिंग स्किल्स पे काम कैसे शुरू किया था, कैसे आपने इनकरेज किया था कि वो पेन या पेंसिल को पकड़ने लग गए थे. मैंने वही आई थिंक एड्रेस करने की कोशिश की थी अभी पहले. सबसे पहले हमने ओटी जो हम ओटी में सीख कर आते थे इनकी थेरेपी से, इनकी ग्रॉस मोटर स्किल से, वो हम काम घर पे भी करते थे. हम जब इनको बिठाते थे तो मैं एक क्लॉक, एक टाइमर रखती थी अलार्म लगा के, शरिया वी नीड टू सिट हियर एंड लेट. और मैंने डायरेक्टली पढ़ाई पे या लिखने पे काम नहीं शुरू किया था. मैंने कोशिश किया था कि मैं उनके इंटरेस्ट का कोई काम दूं जिससे उनके सिटिंग स्पैन पे काम करूं. ठीक है. So I had to work on his brain. I had to make his brain ready for this. And then we work with the fingers and the hand coordination, eye hand coordination. उस पे लिए हम ये स्पंजिंग कराते थे. हम इनको एक स्पून से, अब ये कहने को you know it sound funny probably, but no, all these exercises do help. They do help. बच्चों की पेंसिल ग्रिप पे ये सारे एक्सरसाइजेस काम करते हैं कि जी हम लेंटल्स एंड अभी तक मेरे घर में मेरे रूम के साइड पे एक हम वो मिट्टी के वो लाके रखे हुए हैं और उस पे राइस और लेंटल्स और चिकपीस हर जगह रखे हुए हैं, जिसपे यू नो शरियार को जब सेंसरी डाइट हमको उनको करना पड़ती है तो अपने हाथ डालते हैं, वो स्पून से उठा के दूसरे प्लेट में डालते हैं. तो इस तरीके से हमने उनका सिटिंग स्पैन पे काम करना शुरू करा. हमने उनके हाथों को डिसेंसिटाइज करना शुरू करा. हमने जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हम वी यूज्ड टू मेक श्योर कि उनको किसी किस्म का कोई सेंसरी डिस्ट्रेस एनवायरनमेंट में नहीं है. उनकी जो सीट है जिस पर वो बैठा हुआ है वो बिल्कुल कंफर्टेबल सीट है, और वो दिन का वो टाइम है जिस पर वो सबसे ज्यादा अटेंटिव होता है. तो मैं जब भी अभी तक नया टास्क उसको देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो टाइम हो जिस तक आई सी हिम टू बी you know wide awake and to be very energetic and to be engaging. तो वो टाइम मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ कि यार इस वक्त इनको ये काम कराया जा सकता है. प्रीरेक्विजिट स्किल्स होते हैं जिस पर फिर काम किया जाता है. उससे पहले आप बच्चे को फ्री राइटिंग करा सकते हैं. आप पेपर और पेंसिल देके बच्चे को बैठा दें, let him scribble or let him do whatever he wants to do. You can then work a different kind of shapes. हमने जैसे सर्कल से स्टार्ट किया था सबसे पहले, then there are different kind of linings, you know, patterns होते हैं
जिसपे आप बच्चों को डॉट्स बना के दे दें एंड आस्क देम, यू कैन पार्टिसिपेट विद देम. ओके, फॉर एग्जांपल you know, A child and B child. Okay, mommy, it's mommy's turn. Mommy is gonna make a wavy line. तो मम्मी जो है wavy line कर रही है. Now it's your turn. You're gonna make a wavy line. तो वो बच्चा wavy line बना रहा है. इसी तरह criss cross. और इसके बाद आपको पता है स्ट्रेट लाइंस पर आप आ जाते हैं. स्ट्रेट लाइन बनाना आपने शुरू कर दिया, ये सब हो जाता है. देन वी हैव टू स्टार्ट विद लोअर केस अल्फाबेट्स. और उन लोअर केस अल्फाबेट्स में भी जो मैंने सीखा है अपनी डिफरेंट, मैंने बाय द वे फ्री वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग्स ली हैं. जब भी पैसे देके कहीं मैंने कुछ नहीं सीखा, जहाँ मुझे लग रहा होता था कि दिस इज सम बेनिफिशियल वर्कशॉप और ट्रेनिंग, मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की है. तो वो खास एक कर्व फैमिली होती है, जिस कर्व फैमिली में ब आ जाता है. और तो हम सबसे पहले हमने कर्व फैमिली पे काम करना शुरू कर दिया कि शायद दिस इज हाउ यू पुट योर पेंसिल हियर एंड देन यू हैव टू मेक अ स्मॉल टमी, ड्रामेटाइज करके बच्चे को बहुत ज्यादा उसको उसका इंटरेस्ट उस चीज में रहे जो उसके उस पे रहते. साथ ही साथ मैं उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती थी. जब वो कुछ कर लेते थे तो उनको फिर उस चीज का इनाम देती थी कि शेयर वाओ, ब्रिलियंट, यू हैव डन दिस टास्क एंड देयर यू गो. ये आपको जो भी वो चाहते थे उनको वो चीज में शुरू में जब मैं उनके सिटिंग स्पैन पे काम कर रही थी तो मैं उनको उस चीज से रीइंफोर्स करती थी. हमने जो ग्रेड 2 पे था, ग्रेड 2 पे बहुत ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स आ गए थे. एडिशन, नॉट सिर्फ एडिशन, ग्रुपिंग एडिशन जिसपे कैरी ऑन होता है. सब्ट्रैक्शन, रीग्रुपिंग जिसमें अगेन वो आपको पता है छोटा नंबर बड़ा नंबर कैरी ऑन नहीं कर सकते. अब दैट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. अब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किससे हेल्प लूं. सो आई यूज्ड टू कॉल द स्पेशल एजुकेटर समटाइम्स, आई यूज्ड टू कॉल द मेन स्ट्रीम टीचर आल्सो समटाइम्स. I personally believe, I hope इस तरह के कुछ वर्कशॉप हमारे पाकिस्तान में भी होने शुरू हो जाएं, especially in the schools who claim to be inclusive schools, जहाँ पे उनके मेन स्ट्रीम टीचर्स को ये बताया जाए कि जी how to cater the special need child needs. अगर वो it's for example, जैसे मुझे पता है मेरे बच्चे का potential क्या है. For example, it's X and Y बच्चा who is not interested in doing addition or subtraction. आप उसको उसके हाथ पे छोड़ दें, आप उसको फोर्सफुली काम नहीं कराएं, बट रुके नहीं. जो मैंने सीखा है, आप रुके नहीं. अब जैसे आप ये देख रहे हो, ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं. ये प्लेस वैल्यू बच्चे को बताना, सीक्वेंसिंग आप देख रहे हो, ये टेलीमार्क्स मैंने लगाया हुआ है. फिर ये साइंस के कॉन्सेप्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एंड ओशंस. फिर हमारी नीचे स्टोरी टेलिंग हो रही है, सीक्वेंसिंग स्टोरी टेलिंग हो रही है. There's a concept of galaxy. और अब हम शहरियार जो है वो माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि he can do he can write a paragraph, he can retell a story, he can do cause and effect होता है, he can do reasoning also माशाल्लाह. तो ये जो पूरा मेहनत चली है या कांस्टेंट काम चला है, वो इसी तरीके से चला है कि आई डोंट थिंक ऐसा कोई एक भी दिन होगा जिस दिन शहरियार ने काम नहीं किया होगा. ऐसा कोई भी एक दिन नहीं होगा जो शहरियार ने काम नहीं करा होगा. आप अभी खुद जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये मैथ में ये सारे कॉन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स इनके स्कूल में स्टार्ट हो गए थे. इंग्लिश में वेरी कंसिस्टेंट बेसिकली. you have to there's no choice. yes you have to make a choice in how to cater those needs. आप उसको कैसे ओवरऑल एनवायरनमेंट को बच्चे के लिए फीजिबल बना सकते हैं कि जिसमें बच्चा खुद से आकर आपसे और सीखे. अब जैसे हमारा एक प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें वो मैथ भी करते हैं तो वो इंग्लिश भी करते हैं. यूनिट ऑफ इंक्वायरी है इनके स्कूल में. साइंस में इनके काफी वियर्ड किस्म के, वियर्ड इन द सेंस एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, बट फॉर आवर किड्स वो काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, difficult. And that was the time when I spoke to his teacher. I said, no, he's not going to do it. He can't do it. And I don't have to tell him or push him. I don't have to put pressure on him at all कि जी तुम इसको सीखो. And how we used to do it, लेना हम जैसे मैंने आपको बताया, हम रिसाइकिल चीज़ों से हम घर पे डिफरेंट किस्म के विजुअल एड्स बनाते थे. अब मुझे कॉन्सेप्ट पता चल गया, इनकी टीचर हमें नेक्स्ट एजेंडा नेक्स्ट वीक का भेज देती थी. तो मैं मुझे पता था कि नए नए कॉन्सेप्ट्स अब हैं. उधर से फिर मैं गूगल करना शुरू कर देती थी, रिसर्च करना स्टार्ट कर देती थी. पिंटरेस्ट का मैंने बहुत काम लिया है, मुझे पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है. उसमें एक ही चीज़ के 10 किस्म के कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं. उन सबको मर्ज करके फिर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बनाती थी जो मुझे लगता है शहरियार के लिए आसान होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे बच्चे की नीड्स क्या है. कुछ बच्चों का
बच्चों का तरीका होता है, we should be aware what is the best source of communication for our child. It could be text for somebody, but it could not be, यहाँ कुछ जैसे अब शहरियार टेक्स्ट पे पढ़ते हैं, बट अब शहरियार जो टेक्स्ट पे भी माशाल्लाह से समझ जाते हैं, और इवन सिंपल कमांड मैं उनको दूं तो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट आई मीन, यू नो. तो ये ग्रेजुएट ही करें ना, स्टेप से स्टेप लेके. सो मध्य, सॉरी, अच्छा, इसमें अतिया कुछ क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी. एक तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होते हैं आईपीस को लेके, मॉडिफाइड करिकुलम के. आई थिंक एक और भी पेरेंट बात करे, तो उसको डिवाइस आप कैसे करते हो, ये जरूर पेरेंट्स को बताएं. डू यू टेक लाइक स्कूल का रोल शहरियार का कितना है उसकी ये आईपीस के डिजाइन करने में, ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज भी है. और साथ ये है कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो जिस तरह आप हो, इतने मोटिवेटेड हो, हाउ डू यू टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, अगर क्योंकि पेरेंट्स बहुत ओवरवेल्म होते हैं, ये 2 सजेशंस क्या देंगी आप उनको? अच्छा, पहला आपका पहला क्वेश्चन कि आईपी का भी एक नेक्स्ट स्लाइड है, बट क्योंकि वो पेरेंट पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि आईपी आपको पता है कि इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है, एजुकेशन प्लान हमारे बच्चों के लिए, जो कि स्कूल की जो इनकी स्पेशल एजुकेटर है उनकी, हमारे सारे थेरेपिस्ट, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिंक इन कर एक प्लान बनाए जिसपे हमारे बच्चे के मेंटल लेवल को केटर करे. ठीक है. तो जब किंडरगार्टन और ग्रेड 1 में था, I never got any IP from school for my child. In this grade, I think because you know Sharia के teachers इनके पेज पे added है. So when they saw Sharia flourishing in that way, mashallah, and when they saw Sharia working in this way, probably nobody bothered कि जी Sharia को IEP की भी जरूरत है, Sharia तो सब कर रहे हैं. But no, we needed that, and हमने काफी दफा स्कूल को स्ट्रेस दिया था, हमने प्रेशराइज किया था कि आप हमें प्लीज कुछ IEP दे दो. हम क्योंकि जब वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो गए, और जो कॉन्सेप्ट्स तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा वो कॉन्सेप्ट्स, इवन मैं उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहती थी वो कॉन्सेप्ट्स. तो दैट वाज अ टाइम, आई थिंक जब बिल्कुल इनकी क्लास खत्म होने लगी थी, उससे शायद 2 महीने या 3 महीने पहले इस तरह से हमें एक आईपी मिला था शरियार का स्कूल से, जो मैंने आगे स्लाइड में शेयर भी किया हुआ है. आईपी आप लोग जो वैसे पूछना चाह रहे हैं कि देखें, आप लोग जरूर ऐसा करें कि आप जिस स्कूल में भी, मेन स्ट्रीम स्कूल में स्पेशली अपने बच्चे को रजिस्टर कराते हैं, यू शुड ऑलवेज बी इन गुड टर्म्स विद द मेन स्ट्रीम जिनकी क्लास टीचर है उनके साथ. टेल हर द ट्रूथ, बट एंड टेल हर व्हाट यू शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ योर चाइल्ड. यू शुड, आप यू नो द पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड. आपके पास पूरी ऑडेसिटी होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तानी औरत है ना, वो बेचारी हर जगह बेचारी वाला. आई एम नॉट गोना आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अ टीचर व्हाई, कहीं वो मेरे बच्चे के साथ बिकॉज हमारे बच्चे चैलेंज बच्चा ऑलरेडी होता है, तो वो जो मैंने ज्यादातर देखा है, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन नहीं करते टीचर्स को. नो, यू डोंट नो, हो सकता है बहुत अच्छी टीचर भी आपको मिल जाए. ऑलवेज क्वेश्चन देम. आप उनको अपने बच्चों के बारे में पूरी बच्चों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताइए, या कि आईपी में शामिल होना चाहिए. आप करिकुलम लें स्कूल से एंड आस्क देम टू डिजाइन एजुकेशनल, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान फॉर योर चाइल्ड. यू गो थ्रू दैट प्लान. आप जिस चीज से अग्री नहीं करते, आप फिर जाके अपने प्रिंसिपल या टीचर या जो भी है, आप लोग सब उस पॉइंट के मुतालिक उनसे बात करें. आप बताएं कि जी हमारी बच्चा, और फिर सबसे जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस मोड से ज्यादा लर्न कर सकता है. I believe that is very important to be added in IEP program. और IEP program में भी it is, I don't think that IEP has to be only academic. It has to be non-academic as well, where the school should cater children's sensory needs, उनके social interaction, उनका even daily life skills. कि जी अभी बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, I believe a school who is an inclusive school, they should have any sensory room for our children यार. They should, बच्चों को थोड़ा sensory break मिलना चाहिए. तो ये सारी चीजें, IEP is only, it's not only about academics. वो आपके बच्चे के क्या जरूरियात हैं, आपके बच्चे के क्या वीकनेसेस हैं, आपके बच्चा किस तरह से पढ़ सकता है, कितना पढ़ना चाहिए, क्या गोल्स एंड एक्विजिशंस हैं आपके बच्चे के, आप बच्चे को कैसे ब्रेक दिला सकते हो स्कूल में. आपके बच्चे को अभी सेंसरी ब्रेक सारे बच्चों को चाहिए होता है, उसके लिए उनके स्कूल में कुछ आपको डिमांड करना चाहिए.
आपको ये बात सब ये आपके IEP में एडअप होने चाहिए। एंड देन आप जैसे काउंटिंग है उनके स्कूल में आप 100 तक काउंटिंग कर रहे हैं, फिर शरियार अगर किंडरगार्टन में 100 तक काउंट कर रहे हैं और आपका बच्चा नहीं कर रहा, या मैं वही शरियार जो है इनकी करिकुलम में 100 और शरियार 50 तक कर रहा है, तो आई एम गोना पुट माय फुट डाउन एंड आई एम गोना टेल देम नो, ही इज नॉट गोना डू टिल 100, it's good enough for me if he's able to do till 50 only, that's good enough. तो आप उस और चीज पे satisfied भी रहो, उस चीज पे satisfied रहो, और you know keep educating yourself, ladies, keep educating yourself, know about your rights, जाके मुस्तकिल in touch रहो टीचर से, बातचीत करो, जो इनकी स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनसे बात करो, जब कोई मुश्किल होती है उनसे आप मदद लो, उनसे नहीं मदद मिलती तो जैसे मुझे हुआ कि मैंने हर अब जो शरियार की मेन स्ट्रीम टीचर है, I don't know if she's listening to us, she used to ये ask me, अक्सर मुझे कहती थी कि तुम एक ही कॉन्सेप्ट को इतने तरीके से बता देती हो, तुम you know कि तुम इतना तरीके से कैसे बता पाती हो। तो शायद वो कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है, ऐसा कोई एक इडियम है मुझे याद पड़ता है। तो वो मैंने सोचा कि नहीं जी ये सब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। आई एग्री विद यू हियर कि अगर आप अपने बच्चे में कोई भी, जो भी हमें अभी सुन रहे हैं, आप अगर बच्चे में चाहते हैं कि कोई डिफरेंस आपको फील हो, तो चाहे वो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, टीचर हो, रिसोर्स टीचर हो, यू ऑल मस्ट बी ऑन सेम पेज। और सेम पेज पे तभी आएंगे जब आप पेरेंट के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, बिकॉज पेरेंट इज द बेस्ट रिसोर्स जो आपको बताएगा कि उसका बच्चा किस तरीके से लर्न कर सकता है। सो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, कि वो थेरेपिस्ट से नहीं पूछते, थेरेपिस्ट पेरेंट्स से नहीं पूछते, इस गैप की वजह से हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, बिलीव ये खत्म होना चाहिए। अच्छा टिया, आपके लिए क्वेश्चन आया कि आपके बेटे पे थेरेपीज ने वर्क किया है या सप्लीमेंट्स ने? Okay, so it was a blend of everything, I suppose. Yes, supplements, biomed, जैसे आपको बताऊं, मेरे डिनाई क्या, मेरे कुछ जाहिलाना मोड पे जब मैं कभी कभार थेरेपी सेंटर कराची में जाती थी और मैं थेरेपी के वेटिंग एरिया में देखती थी कि सारे बच्चे आ रहे हैं, दे आर हैविंग चॉकलेट्स एंड दे हैव टाइम ऑफ देयर टाइम, यू नो, वो टाइम ऑफ देयर लाइफ, वो चिप्स खा रहे हैं और वो चॉकलेट्स खा रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग, एंड देन शहरियार इज सिटिंग ऑन वन साइड आइडल, वो पंपकिन के चिप्स, बेचारा देसी घी के बने हुए पंपकिन के चिप्स खा रहा है और सेसमी सीड्स और पंपकिन सीड्स खा रहा है। So it's like, why, man? Why my child has to suffer that much? And you know, and he's not even talking like, you know, those kids are talking. So, or back up here, you know, that's again another topic. That's how I started even motivational talk with some of the parents, and I started to give them what I have. कि थोड़ी सी अवेयरनेस लाऊं कि जी भाई जंक नहीं करना पड़ता और ये नहीं करना पड़ता और ये नहीं करना पड़ता। तो but Shaira, to be very honest, it was not biomed only. It was for me, it was commitment. It was daily work, and above all, it was my child. I'm blessed with a very, very good child, mashallah. He's an angel, alhamdulillah. He listens to me. He listens to each and everything I want him to say. He meets my expectations, man. I have learned so much from him. I am altogether a new person. You know, जो मेरे अंदर अगर अभी पेशेंस और बहुत मुश्किल सिचुएशंस को भी मैं बहुत आसानी से टैकल कर पाती हूँ, it's all because of him. It's all because of him. So for us, yes, it's constant effort, it's commitment, it's a blend of everything. अच्छा टिया, people are asking कि आपका कोई YouTube चैनल है? नहीं जी, आप बना के दे दें मुझे। आपका कोई YouTube चैनल है Instagram पे जहाँ पे आपको फॉलो कर सकें? Yes, I do have an Instagram page. This is highly in demand. हम लोग तो कहते हैं टिया से बना ले। Do that, Elena. टिया, you should do it. मुझे लगा होगा आप बताएंगी मेरा ये चैनल है। How sweet. Elena is a social worker. Elena दुनिया के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। Elena is going to make a YouTube channel. अच्छा टिया, अब हम इसको थोड़ा रैप अप करेंगे। तो मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगी कि आप अगर आप फिंगर टिप्स पे बताना चाहें, वो क्या टिप्स हैं जो मदर्स अपने बच्चों के साथ होम स्कूलिंग कर रही हैं उनको अपनानी चाहिए, जिससे उनके बच्चे की डेवलपमेंट में थोड़ा डिफरेंस आए? तो वो कुछ एनी लास्ट टिप्स? अच्छा देखिए शहीरा, मुझे लगता है कि एज बहुत मैटर करती है। हम जिस टाइम से होकर यहाँ तक आए हैं,
तो वो ऐसा भी टाइम था जब एक चीज हमारी शरियात की, जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन मेंशन होता था। आप मैंने अपनी गलती से एक बात सीखी है, वो ये सीखी है कि डोंट पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ठीक है। मैंने बहुत प्रेशर लिया। देयर कुड बी डेज व्हेन यू डोंट फील लाइकिंग एनीथिंग, लेट इट गो, डोंट डू इट। देयर कुड बी डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक वर्किंग विद योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड वांट्स टू वॉच टीवी, इट्स ओके, लेट इट गो, कोई मसला नहीं होता। जो मैंने नहीं किया, मैं आपको अपने कुछ वीकनेसेस से बता रही हूँ जिनसे मैंने सीखा, जो अब मैं कोशिश करती हूँ उसको कोप अप करने के लिए। When I'm saying that not a single day has passed where Shahryar has not worked, I truly mean it. हम जब ट्रैवल भी कर रहे होते थे, हम यूएसए में या कनाडा में भी बैठे होते थे, तो शहरियार जो है वो शाम के वक्त पार्क में भी बैठ के कोई ना कोई काम कर रहे होते थे। तो इतना ज्यादा हद तक कहते हैं ना वो जुनून टाइप कुछ हो जाता है, मैं उस हद तक इनके साथ काम करती थी। तो गो इजी, बी इजी ऑन योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट, बी डेडिकेटेड, सेट योर गोल्स। जैसे हम अभी आईपी के रिलेटेड भी बात कर रहे थे, आपको, मुझे लगता है every child is different, you know, every child's sensory need is different, every child's wavelength is different. अगर कोई आज एक दिन में सीख लेता है, कोई दूसरा बच्चा वो नहीं सीख पाएगा, but then it's okay, probably वो उसको वो चीज आती हो जो उसको नहीं आती होगी। Do not compare your child with the other child, because you know, जब अल्लाह ताला एक चैलेंज अच्छा देता है ना, हमें पेशेंस ऑलरेडी मिल जाता है। So when I say we are super moms, I mean it, we are. हमारे जैसे दूसरे लोग नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट जब कर लोगे ना कि जी ये सब चीजें हैं, अब आपने अपने रूटीन जो सेट करना है वो आपने अपने बच्चे के लिहाज से सेट करना है, आपने इसलिए नहीं सेट करना। एंड आई एम गोना रिपीट दिस थिंग अगेन because that is what I see happening in Pakistan. If ABC woman has targeted these goals for her child, I'm going to do that. No, don't do that. हाँ, आप उस औरत के टारगेट्स को इंस्पिरेशन देख के जरूर देख सकते हैं। अब बहुत लोग अभी मुझे कहते हैं, जब यू नो कि खुदा ना करे आप शरियार के उसमें ऐसे लगे है, खुदा ना करे नजर ना लग जाए, ऐसे ना हो जाए। माय सोल मोटिव हियर इज टू जस्ट यू नो मोटिवेट अदर्स कि जी वही बच्चा जो कि नहीं बैठ पाता था, वही बच्चा जो कि पेंसिल नहीं पकड़ सकता था, आज वो बच्चा माशाल्लाह से पूरे पैराग्राफ स्टोरी राइटिंग, वो माशाल्लाह से यू नो उसके जॉइंट अटेंशन पे काम करने के बाद he can retain the information and he can reproduce the information. You understand what I mean? तो ये पूरा जो हमारा काम उसके साथ रहा है, स्लो एंड स्टडी, सब अपने टाइम के लिहाज से सब लोग सब कुछ कैटर कर लेते हैं। I see so many kids who are talking. I mean, Shahryar still lacks some kind of expressive. He does not talk fluently. Shahryar की expressive speech अभी भी we see functional talk coming, alhamdulillah, but it's not much, but it's okay. उसको टाइम लगेगा, but इंशाल्लाह सही हो जाएगा, इस चीज को भी सही हो जाएगा। आप बट मुझे बहुत ज्यादा ये जरूर है कि आप अपने बच्चे के लिहाज से गोल्स एंड एक्विजिशन जरूर टारगेट करें, उसको सेट करें और फिर अपनी जर्नी उसके साथ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो डाइट की है, चाहे वो ओटी की है, चाहे वो स्पीच की है, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो नॉन एकेडमिक्स है। बहुत बच्चे आजकल इतनी थेरेपीज आ गई हैं हमारे पास, हमारे फ्लोर पे भी यू नो वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सम पेरेंट्स जो कि पीआरटी थेरेपीज के बारे में बात करते हैं। फ्लोर टाइम थेरेपी कराची में आ गई है, प्ले बेस्ड थेरेपीज कराची में आ गई हैं, so why not do that? Make use of such therapies. Make use of YouTube. Everything is available on YouTube, man. Everything is there. There are so much information there. There are so many free online courses जो मैंने खुद करे हैं. Those are free online courses जो मैंने attend किए हैं, और आप सब लोग अपने आप को educate कर सकते हो। वो पूरा का पूरा बताते हैं कि कैसे हम बच्चों की पेयर बिल्डिंग कर सकते हैं, हम उनकी जॉइंट अटेंशन पे कैसे काम कर सकते हैं, इनका सोशल इंटरेक्शन पे कैसे काम कर सकते हैं। आप उन सब चीजों पे काम करो। Yeah, just start working. Thank you so much, Jia. आप अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव ऑन कर दें ताकि थोड़ा बहुत जो आपने प्रिपेयर किए वो भी पेरेंट्स देखें, अगर ताकि हम इसे क्विकली रैप अप कर दें, because you have prepared such amazing slides. I don't want parents to miss anything. Because no, they're just oh no, they're just two left, because I know it's not related to academics only, but I assume कि you know ये सारी चीजें
ये जब हमारे बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उनके टैंट्रम, उनके मेल्टडाउन में, जैसे कि जिनको ऑडिटरी प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेडफोन काम कर सकते हैं। वेटेड ब्लैंकेट्स हमने शरियार के लिए बहुत इस्तेमाल किए हैं। हमने शरियार के साथ वेटेड जैकेट्स इस्तेमाल करे हैं। हमने उनके साथ वेट्स इस्तेमाल करे उनके पाँव पे और हाथ पे, जिसपे मेरे माँ लोग जो हैं, मुझे मेरी अम्मा लोग जो है मुझे डांट दिया करती थी कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यू हैव put weights on your child hands and on his legs, but that was part of the package. मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता था कि तो वही जो आप जो पहला भी सवाल था कि इनके सिटिंग स्पैन पे काम करने चाहिए, तो हमें वेट्स ने भी बहुत काम करा था। जैसे और बहुत से जिनको लाइट की सेंसिटिविटी होती है, आप सन ग्लासेस का काम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लॉक, शेड्यूल्स, टाइमर, ट्रांजिशन किस तरीके से होता है, वो सब बच्चा अगर उस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होगा, तो जो अक्सर आप शॉप पे देखते हैं, अक्सर बहुत पेरेंट्स ने मुझसे इस सवाल मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि बच्चों के मेल्टडाउन होते थे, टैंट्रम होते हैं, हम उन्हें कैसे कंट्रोल करें। तो आई थिंक आप सबको एक पोर्टेबल टूल किट प्रिपेयर करनी चाहिए अपने बच्चों के चैलेंजेस को सामने रखते हुए। जिसको ऑडिटरी प्रॉब्लम होता है, जिसको विजुअल प्रॉब्लम होता है, जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काम डाउन करती है, आप उसको समझो और आप अपनी टूल किट तैयार करो और इसको अपने साथ कैरी करो, एक बैग में, गाड़ी में रखे रहो, जिधर जो आते हो आप उसको इस्तेमाल करो। तो ये मैं जल्दी से आपको एक 2 सेकेंड्स में हमारे जो टूल किट हमने शरियार के लिए प्रिपेयर की हुई थी, जैसे स्क्वीजी बॉल्स भी हैं, उनके जिम बॉल हम अभी तक इस्तेमाल करते हैं। उसको टाइट कार्पेट में रोल करके, कभी ब्लैंकेट में रोल करके उनकी पूरी बॉडी को स्क्वीज करते हैं काम डाउन करने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो और ये मैंने पिक्चर्स भी लगाए थोड़े से कि स्पेशली फॉर दोस्त पेरेंट्स जो कि जिनको बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो शायद ये कुछ हेल्पफुल रहें। एंड ये जैसे आईपी का हम बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस वाज एन आईपी व्हिच वी गॉट फ्रॉम हिज स्कूल अकॉर्डिंग टू शरियार्स लेवल, जिसमें उन्होंने इंग्लिश को, ग्रामर को, यूनिट ऑफ इंक्वायरी को और साइंस को, इन सबको कवर किया था। तो ऑल दोज पेरेंट्स जो कि शरियार के ईयर के उनके एज मेट्स हैं, they can go through this IEP, and we have already spoke about IEP, so I should rather move on. So fellows, the journey goes on. हमारे इन्हीं challenges के साथ, इसी environmental factors के साथ, इसी सबके साथ हम कोशिश मेरी यही है कि हम शरियार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सके, हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रहते हुए कुछ ऐसी स्किल उसको सिखा दें इंशाल्लाह, जो कि उसके लिए शरियार के लिए या हमें एज अ फैमिली शरियार के लिए बेनिफिशियल हो। इसी आप सब लोग जो भी हम पढ़ा भी रहे हैं, हम अकेडमिक्स में भी काम करें, वी विल रीच अ स्टेज इन आवर लाइफ जब प्रॉब्ली हमें लगता है हमारा बच्चा 5th ग्रेड में या 6th ग्रेड में होगा, जब हमें होता है व्हाट नाउ, अब क्या करें, आगे क्या है। तो उसके लिए भी जैसे कि मैं अभी से काम कर रही हूँ, आई नो फ्यू पेरेंट्स जिनके बच्चे 6th-7th ग्रेड में हैं और उनको नहीं पता उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या करना है। मेरा बच्चा 3rd ग्रेड में है, तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज और प्लेसेस वेयर वी कैन वर्क ऑन। जैसे मैंने आपको बताया, हम कोडिंग पे काम, हम सॉरी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। हम इसको डिफरेंट किस्म के, मैंने स्पोर्ट्स में डाल दिया है, मैंने इसको म्यूजिक में डाल दिया है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेज what he is best in, ताकि मैं उस रास्ते पे चल के इनके स्ट्रेंथ को मजीद लाइटन अप करूं। That's it. Thank you so much, Tia. You have done such an amazing job and still doing it. और I'm sure कि आज आपके जो सेशन है इसके बाद parents would have learned a lot of things, because इतना thorough एक जर्नी को एक्सप्लेन करना एक माँ ही कर सकती है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से काम कर सकते हो। और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया आज, तो इवन आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। तो यही चीज है कि टू रैप इट आपके जो कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन, जिस तरीके से क्रिएटिविटी से आपने अपने बच्चे के लिए घर में चीजों को कंपाइल किया है, जो चीजें नहीं समझ पाता उसको किस तरीके से आपने मॉडिफाई किया है। और वो कहते हैं ना, कमिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे आप उसको पढ़ाना चाह रहे हो, आप उससे लिखवाना चाह रहे हो, आप उससे कोई एक्टिविटी करवाना चाह रहे हो, आप ये तो देखें आपके बच्चे का लेवल क्या है।
आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक बच्चा है वो 4 फुट का है तो वो छत को हाथ लगा लेगा, दैट इज समथिंग नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से हमारे बच्चे कॉग्निटिवली डिफरेंटली डेवलप्ड होते हैं। हमें बीइंग पेरेंट्स, अगर शायद हम उनके लेवल पे आके काम करेंगे तो दिस इज द राइट थिंग कि हमारा बच्चा ज्यादा एक्सेल करेगा, बजाय इसके कि हम उसको पुश करते रहे और उसको एक तरह का न्यूरल प्रेशर के अंदर ही हमेशा रखे ना, कि उसे समझ ही नहीं आए कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो सबसे अच्छी बात है कि यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों की स्पेशली स्किल्स डेवलपमेंट में उन कल को वो जाके क्या फ्यूचर में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। आई होप के एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी, मेरा 4 इयर्स का बेटा है तो ना आर्टिस्टिक है वो, तो वो सारा दिन ना बहुत बेचैन रहता है। मुझे कुछ एक्टिविटीज जो मैं से करवाती थी वो अब उससे बोर हो गया, वो करता नहीं है। वो मैं उसको क्या करवाऊं कि वो बोर भी ना हो और ना इंटरेस्ट ले चीजों में, वो लर्निंग की तरफ नहीं आता, बस रोता है और उसको बस टीवी देखना है, हर वक्त टीवी देखना है या रोना है। अच्छा मरियम, इसमें तो ये चीज आ जाती है कि आप इम्प्रोवाइज करें। बात यही होती है ना, बी क्रिएटिव, इम्प्रोवाइज करते रहेंगे तो बच्चे बोर नहीं होंगे। हमें भी कोई एक खाना खिलाता रहेगा तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो दिस इज द की। जैसे आज अतिया ने, आपने देखा ना कि एक ही चीज को उन्होंने क्या बात बताई कि वो एक टॉपिक को कितने मुख्तलिफ एंगल से सिखाती हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट भी बहाल रहे और बच्चा सीख भी जाए। दिस इज द थिंग यू हैव टू अडैप्ट, आई विल से। चले, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और Shahira, would you like to say some last words? Yeah. Thank you, Tia. Thank you so much for such a motivational session. बहुत inspiring था, मुझे खुद आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। And people are asking for a second session, तो हम आपको जाने तो नहीं देंगे obviously। हम second session जरूर आपके साथ plan करेंगे। And we would love to see your resources and everything। कुछ hands on जिससे थोड़ा parents को पता चल सके हम कैसे कर सकते हैं, तो हम जरूर इंशाल्लाह plan करेंगे। Thank you again, Tia. We wish a very bright future to your son. My pleasure. और all the very Please best. keep him in prayers, all of you. Tia काफी ज्यादा है, Thank so when you. you get time तो आप Facebook पे chat box में काफी questions है, तो आप please उनका respond कर दीजिएगा whenever you get time. Sure, और I'll do बिल्कुल that. किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने मिस आउट कर दिया, हमने कोशिश की साथ साथ पूछे, वो भी अपना कमेंट जिनसे फेसबुक में लाइव चैट के नीचे दे दीजिएगा, तो इंशाल्लाह चिया उनको आंसर कर देगी। And thank you so very much for doing My this. pleasure, Elena. You're such an amazing mom. I love you. So are you keep doing the good work, ladies? Thumbs up. See you. All right. Thank you very much, everybody. Allah Hafiz. Take care, everyone.